Very good afternoon to all of you, and warm welcome to all of you and our chief guest and the motivator today, Commander Jetli Sahab. Respected ED sir, Jetli Sahab, my dear HOD and all colleagues. Today, all of you know we have gathered for some wonderful session that we can. आगे के शब्द जो है आपको भरने हैं आफ्टर the you hear the speech or the motivational speech of Dr. Jetli Sahab. On this occasion, as a gesture, I will request ED sir to formally welcome Commander Jetli Sahab by giving a plant in the form of bouquet. Before going ahead, I will request all of you to switch off your mobiles or keep it in on silent mode, and I will just request ED sir to save or introduce our today's chief guest, Commander Jetli Sahab. Thank you very much. Thank you, Mr. Gaikwad, and I'm happy to see a kind of after a long time, a small gathering here. But then I thought it should start with a positive, energetic note. That was my objective. And while Commander Jetli is known to me for long, he's an ex-IIT alumnus, so that's the connection I thought. And I used to get a lot of mailers from Pan IIT alumnus, and he used to be the motivational. He's also the founder of Pan IIT Alumni Association. Pan IIT, I think many of you may aware, is a huge movement. I would say now it's a movement. When Professor K.L. Chopra, my own guide, was from the IIT Kharagpur, he started the Alumnus Association. I remember he used to talk much. Whenever we used to travel, I used to ask him, what is the kind of, every day IIT comes with an innovation. That's the spirit which I think IITians have got into their blood. I think that energy we will be able to find from Commander Jetli. I think wherever he has gone, he has not only been the instrument for motivation, but also allowed individuals to think. I think his own, each and every word has a lot of inspirations in that. That's the thing we need to derive from him. I would expect each one to go through that process. I'm sure he will guide us, take us through his own experience, at the same time clubbed with his own success, which have gone through various institutions, organizations, including the recently he shared with Software Technology Group. It's a small group which was getting into things, he revived it. So that's the motivation and spirit which he brings. So currently, I would just for your benefit, I will not talk much. I think it's more you have to listen, observe, and come back and react. That shows what you have imbibed in you. But a brief about, since I've already told brief about him, he is currently after his post, his army, navy, etc. He has been currently on the board of IIT Bhubaneswar as a Government of India representative. He's also on the UGC representative in the SRM University in the Finance Committee. He has his own, he has now thought that whatever he earns, it will go to the youth development. So he has created his own movement on Youth for Nations, and he motivates, of course, he talks, he has addressed more than, I should say, 200,000 students covering 250 institutions, it may be more. So that's the kind of scale he has. I think the army, his navy contribution makes more drive, more reach out to the youngsters in terms of motivating. I thought this is one young generation. There is a youth. If you look at the average age of the employees here, less than 30, 30 is around. So that itself sees that the organization will have lot of transformation, development from
you know, somewhere when 1981 when it started, no computers, nothing, but today we are moving into completely digitally enabled services. So that is a change which we are going across, and in terms of our own organizational transformation, I'm sure little bit of these words should help you to absorb what we are and how we are, and here are the youth. I think it's floor is to you to take up and cheer us. Thank you. Hello, check. थोड़ा volume कम. Yeah. Yes. Hello, check. Check. Yeah. Okay. Hello, check. So good afternoon, everybody. So thank you very much, sir, for inviting me here. Last week we had a cup of tea. Yes. I came here. I like the office very much. Though my friend used to be here in this office long time back, but I never came that time. Some of you elderly people may be knowing him, Meduri, Dr. Meduri. So, he was here, but we were not here. Achha, okay. So he happens to be my batchmate from IIT Kharagpur, जिसको मैंने election में हराया था. And then we were together in JP University. He was the vice chancellor, I was the dean. So, okay. This title, we can. These two words, they have a lot of power in that. In fact, one of my commanding officer from Gursharan Singh, he used to say in his school, one of the coach, कहता है हमारी टीम थोड़ी weak भी होती थी, he used to make them gather together and shout on top of their voice, we can. And marginally stronger team को भी हम हरा देते थे, जोश के साथ. So these two words have got a lot of josh. In your personal life also, अकेले भी कभी बैठे हो और डिप्रेशन आ जाए थोड़ा सा दिमाग में, उससे बोलो I can. अपने आप को सेल्फ assertiveness जिसको बोलते हैं वो कीजिए और जोश आ जाएगा आपके अंदर. So these two words, and that is why my first book when I came तो उसका टाइटल भी यही है, we can. और फिर उसकी हिंदी ट्रांसलेशन करनी थी with some additions, तो उसका नाम खैर मैंने रखा सफलता की उड़ान. And third one is 100 great IITians dedicated to the service of nation. Those IITians who didn't go abroad, who stayed back in India. उनकी स्टोरीज है उसमें. So नंदन नीलेकानी जी की स्टोरी है उसमें, नारायण मूर्ति जी की है, and there are many more of course. So इसको जरा क्लिक कर देंगे, एक वीडियो. किसके पास है मेरा लैपटॉप? कर दिया? ओके, फाइन. ये लाइट्स ऑफ कर दें अगर तो, ये वाली पॉसिबल? Neil Armstrong reporting. What a way to get to that mark. Punched through the covers. Magnificent stuff from a truly magnificent cricketer. This is our moment. This is our time to put our people back to work and open doors of opportunity for our kids, to restore prosperity and promote the cause of peace. Yes, we can. Thank you.
of these people in this video, they were game changers. Now, who are game changers? When the world says something cannot be done, they say, hey, I can do it. And they do it. दुनिया कहती है नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, वो कहते हैं करके दिखाएंगे यार, कर भी देते हैं वो. And what exactly do game changers do? They question the status quo. जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहे. नहीं, we want to bring about a change. So they dare to dream. They are great learners. They are innovators. They have the courage to take action. That's the beauty of the game changers. They have the hunger for change. And here is one of the greatest game changers the world has produced. World. I'm not saying India, let me tell you. दुनिया इनको आज सलाम कर रही है जनाब. पुतिन भी इनकी बात सुनता है और ट्रंप भी सुनता है और जो रिटायर हो गया बिडेन वो भी कुछ हद तक सुनता था. What a great man. कहां से कहां आ गया. But if he can come from those levels to this level, anybody can go to any level. Anybody. Am I right? You can be the Prime Minister of India tomorrow. अगर रेखा गुप्ता दिल्ली की चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं तो कोई भी बन सकता है. उसने सोचा भी नहीं था कुछ महीने पहले तक कि मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं. बिल्कुल नहीं सोचा था उसने, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज बैठे थे, परवेश वर्मा जैसे बंदे. बट देन टुडे शी इज डूइंग वेल. स्टार्टिंग में ही उसकी जो भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं बहुत बढ़िया आ रही हैं, फर्स्ट क्लास. सो आपके अंदर वो काबिलियत होती है, उसको बाहर निकालने की जरूरत होती है. सो दे नेवर गिव अप. Where are we as a country? Just let's see. एक बार थोड़ा सा कुछ झलक देखते हैं. Number 1 in GDP growth rate. Am I right? Yes. And who is number 1 in digital skill index? India. And number 1 in online payments? India. Number 1 in per capita data consumption? अरे जोर से बोलो यार. India. Number 1 in number of startups starting per day? India. Number 1 in number of AI experts, artificial intelligence? India. Number 1 in milk, jute, spices, sugar. इन चारों में हम लोग नंबर 1 हैं. और जब हम स्कूल में पढ़ते थे, छोटे होते थे, ये सब चीजें एक्सेप्ट स्पाइसेस इंपोर्ट होती थी. स्वीडन से मिल्क आता था, मिल्क पाउडर बच्चों को दिया जाता था पानी में घोल करके ताकि इनकी नरिशमेंट हो जाए. टुडे वी आर एक्सपोर्टिंग ऑल दीज थिंग्स एंड वी आर नंबर 1 इन प्रोड्यूसिंग फिल्म्स आल्सो. बॉलीवुड, टॉलीवुड, ये वुड, दैट वुड. नंबर 1 इन द वर्ल्ड. एंड नंबर 1 इन परसेंटेज ऑफ वुमेन कमर्शियल पायलट्स. मालूम था ये? नहीं मालूम था. वी आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड. जितनी हमारे पास कमर्शियल पायलट्स हैं वुमेन में एज ए परसेंटेज, वी आर नंबर 1 इन द वर्ल्ड. ये अमेरिका वगैरह सब पीछे हैं. हैप्पी मैडम? यस. सो मातृशक्ति, नारी शक्ति हमारे हिंदुस्तान की बड़ी जबरदस्त है. हमने भुला दिया उसको थोड़ी देर के लिए. नंबर 1 among 110 nations for inclusivity measures towards religious minorities. We are the only one जो सबको गले लगाने के लिए तैयार हैं. We are the only one in the world who says वसुधैव कुटुंबकम. We are the only one says एकम सत विप्रा बहुधा वदंती की. सत्य एक है, रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन वहीं पहुंचोगे. अच्छे कर्म करो, that's all. और बाकी लोग क्या बोलते हैं? कहते हैं जी हमारा रास्ता फॉलो करोगे तब आप वहां पहुंचोगे. वो कहता है हमारा रास्ता फॉलो करोगे तब हम पहुंचोगे. जैसे कि रिजर्वेशन करवा के रखी है उन्होंने वहां पर, और उसके कारण लड़ाइयां होती हैं, वो टेररिज्म होता है, वो सब कुछ गड़बड़ होती है. We are the only one who says embrace all, hate none. We are the only one. We don't spread hatred in the name of religion, in the name of the way you worship. We don't. हम सबकी इज्जत करते हैं. और इस संस्कृति को कोई अगर तोड़ना चाहे, बंद करना चाहे, खराब करना चाहे, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग. आज ह्यूमैनिटी जिंदा है भाई साहब इस देश की संस्कृति के कारण है. लेट मी टेल यू, उसका इंपैक्ट ऑन दोज पीपल आल्सो. And this statement is being made not by me. So many global philosophers from so many countries. And Vivekanand ji ने शब्द शिकागो में एड्रेस दिया था. He said, I am proud to belong to a religion which has taught the world both tolerance and universal acceptance.
Nobody is more tolerant than we people in this world. So we should be proud of our Sanskriti, proud of our nation, proud of our scriptures, proud of our Rishi Munis, and proud of whatever we are today. एकदम गर्व होना चाहिए हम सबको उसके ऊपर. Continuing with that, we are number 2 in steel production today. Number 2 भी होना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है. Number 2 दुनिया में. Number 2 in coal production also. Number 2 in textile production also. Wheat and rice में भी हम नंबर 2 पे आ चुके हैं. और फ्रूट्स वेजिटेबल में भी नंबर 2, मोबाइल में भी नंबर 2 आ गए हैं. अभी मैं इकोनॉमिक टाइम आज का ही देख रहा था फ्रंट पेज के ऊपर, वी हैव स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मोबाइल आल्सो. हिंदुस्तान से कंपोनेंट, वो भी किसको? चाइना को और वियतनाम को. यहां से कंपोनेंट जा रहे हैं अभी. आज का इकोनॉमिक टाइम्स फर्स्ट पेज. यस. और सेमीकंडक्टर तो बनने ही वाले हैं हिंदुस्तान में. आई थिंक असम का तो बोर्ड वोर्ड सब लग गया, वहां पे प्रोडक्शन की भी ऑलमोस्ट तैयारी शुरू हो चुकी है. देन गुजरात में है, और कहां कहां पर है? बॉम्बे में भी है कहीं पर. गुजरात एंड असम तो है 2. Southern, yes, good. And we are number 2 in solar installations also. कहां से कहां हिंदुस्तान पहुंच गया. Number 3 in electricity production. We are actually an electricity surplus country today, let me tell you. Plenty of electricity is there. नहीं तो इसी नोएडा में मैं भी रहता था किसी जमाने में, तो खूब जाया करती थी इलेक्ट्रिसिटी. And we have the 3rd most powerful air force in the world today. US, रशिया हमसे आगे हैं, चाइना से भी हम एक स्टेप आगे हैं. लेट मी टेल यू. गलवान में चाइना ने पंगा लिया, उसको ऐसा मारा, वो नेक्स्ट टाइम 50 बार सोचेगा पंगा लेने से पहले. सो दैट इज टुडे इंडिया. और जो भी यंगस्टर्स हैं पर्टिकुलरली, I say you people have taken birth at a very right time in this country. माँ बाप को थैंक यू बोलिए ठीक समय पर आपको यहाँ पर लाने के लिए. ब्लैकआउट देखे ही नहीं इन्होंने. यस, या देखे भी होंगे जब बहुत छोटे होंगे तब देखे होंगे. एंड पर्टिकुलरली इमेजिन जब 2047 में हिंदुस्तान विकसित भारत बनेगा, यू विल बी कंट्रोलिंग थिंग्स इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस. यू विल बी कंट्रोलिंग थिंग्स. 2047 Viksit Bharat, and that is possible if you put in 100% पूरा एफर्ट लगाएंगे आज. आप लोग भी और दूसरे लोग भी जो बड़े हैं, सब लोग. Okay, here are some most inspiring Indian professionals and leaders, and everybody I think you recognize this man. सभी लोग पहचानते हैं? सुंदर पिचाई. Okay. What about this lady? There's a prize for that if anybody finds out correct name. मैडम दिखाई दे रहा है आपको? मुश्किल है. Nobody. जब कोविड आया था, ओके बोलिए, अभी बोलिए. करेक्ट, करेक्ट. कुछ हद तक तो बता दिया, अब नाम बता दीजिए. She is from Pune. Pune. Correct, correct. And she was in advanced stage of family way. और फिर भी उसने लगी रही, दिन रात काम किया और वैक्सीन क्रिएट कर दी विद इन हार्डली 3-4 हफ्ते के अंदर या 5 हफ्ते में. तो इन मैडम का नाम है मिनाल डी भोसले. तो इनके लिए जरा जोर से ताली बजा दीजिए मिनाल डी भोसले के लिए, जिसने उस कोविड महामारी को टैकल करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया. और ये कौन है जनाब? काफी एल्डरली पीपल ऑल दे नो. यंगस्टर्स को मालूम नहीं है. नहीं मालूम ना? यस, करेक्ट. आज जिस मेट्रो में चल रहे हो, बिकॉज ऑफ हिम, द मेट्रो मैन ऑफ इंडिया. और मेट्रो से पहले क्या किया था उन्होंने? बहुत बड़ा काम, कोंकण रेलवे और पंबन ब्रिज का रिपेयर किया था, जो दैट इज अनदर, व्हेन ही वाज अ यंग इंजीनियर बेसिकली इन रेलवेज. दैट इज द टाइम व्हेन ही केम इनटू द लाइमलाइट.
जब वो पामन ब्रिज को रिपेयर किया था। कितने लोगों ने पामन ब्रिज देखा हुआ है, जरा हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा, बहुत कम लोगों ने किया हुआ है। ओके, सो पामन ब्रिज समुद्र के ऊपर बना हुआ है, ट्रेन जाती है उसके ऊपर। जब शिप को गुजरना होता है तो बीच वाला पार्ट ऐसे खुल जाता है, शिप चला जाता है, फिर बंद हो जाता है। धनुषकोटी नहीं, मेन रामेश्वरम जाने के लिए, मेन रामेश्वरम, धनुषकोटी तो और आगे हो गया। यस, करेक्ट। अभी वहां पर एक नया ब्रिज भी बन गया बाय द वे, बट वो नया डिजाइन बना है, उसमें वो वाला पार्ट, सेंट्रल पार्ट रेज हो जाता है हाइड्रोलिक से, शिप चला जाता है, फिर नीचे आता है। सो ये है श्रीधरन साहब। और ये एक और ग्रेट आदमी है, चलो ये एक ही आदमी ने बताया है तो इनको फिर अवार्ड मिलना चाहिए। बिल्कुल सर, आपका नाम? रत्नेश। रत्नेश जी के लिए जोर से ताली बजाई जाएगा। और रत्नेश जी को अवार्ड भी देना चाहिए मेरे ख्याल से। सर ये आपके लिए अवार्ड है, स्माइली बॉल। ग्रेट, बिल्कुल सर, फकीर चंद कोहली जी, बिल्कुल ठीक बोला आपने। द फकीर चंद कोहली जी टीसीएस के चेयरमैन थे। 1986 की बात मैं बता रहा हूं आपको। मैं, टीसीएस वाले हैं यहां पर कोई? अरे आपको पता ही नहीं है, वेरी बैड। अरे एनीवे, तो 1986 टीसीएस वालों के लिए आई वेंट टू यूके टू ब्रिंग आईएनएस विराट। आई वॉज अ यंग लेफ्टिनेंट, सो पार्ट ऑफ द क्रू। फर्स्ट में 20 ऑफिसर्स एंड सम 180 सेलर्स गए थे, उसके बाद बढ़ते गए। तो वी वर इन ए प्लेस का प्लीमथ, साउथ में पड़ता है। वहाँ पे इंडियंस ना के बराबर कोई इंडियन नहीं है वहाँ पे। यूके वगैरह बाकी जगहों में तो बहुत है कि वहाँ नहीं थे। बट बाजार में दो अचानक एक इंडियन दिखाई दिए। हमने कहा ये नेवी वाले तो है नहीं, तो मैंने उनके कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा यू फ्रॉम इंडिया? कहते यस सर। व्हाट आर यू डूइंग हियर? सर वी आर फ्रॉम टीसीएस, वी आर डेवलपिंग बैंकिंग सॉफ्टवेयर फॉर दिस कंट्री। 1986, and the man who visualizes this man, who started sending software engineers all over the world as way back as in 1986. उससे भी पहले शुरू कर दिए होंगे, बट हमने 1986 में देखा। So that man was a visionary. तो आज अगर हम आईटी के फील्ड में सुपर पावर हैं, the credit goes to this man. And here is one more. Who is that? ध्यान से देखो। It's you. It's you there. Are you there? Anybody for that matter? Just imagine, कुछ सालों के बाद कोई आदमी इसी ऑडिटोरियम में आकर के प्रेजेंटेशन दे रहा है और आपकी फोटो दिखाई जा रही है। Is it possible? Is it possible? It is possible. और जो लोग थोड़े रिटायर होने वाले हैं, ये मत सोचें कि यार मेरा तो अभी इनिंग्स खत्म हो गई है, मैं क्या करूंगा अभी, ये मत सोचें। किसी भी स्टेज पे आकर के यू कैन डू वंडर्स, एंड द हिस्ट्री इज फुल ऑफ सच एग्जांपल्स। लेट मी टेल यू, एक आदमी का नाम था अन्ना हजारे, जिसको कोई नहीं जानता था। अचानक दिल्ली में आया रामलीला मैदान में और कहां से कहां पहुंच गया वो। ये अलग बात है, उसने गलत आदमी के साथ थोड़ा सा बट अन्ना जी वॉज गुड, आई विल से। उसको लोगों ने मिसयूज किया, बट वो दुनिया में उनका नाम फैल गया। एट व्हाट एज? ही मस्ट हैव बीन, आई थिंक 75 के आसपास थे उस टाइम भी वो। एक और आदमी जिसने बहुत दुनिया में वंडर्स किया है, एनीबॉडी कनेक्टेड विद इस्कॉन हियर? इस्कॉन, इंटरनेशनल श्री कृष्णा कॉन्शियसनेस हरे राम हरे कृष्णा मूवमेंट। हाँ जी, यू ओके। कौन थे उनके फाउंडर? श्रीला प्रभुपाद जी। At what age he went to USA? 69, yes, correct. 69 years की एज में आकर के उनके गुरुजी ने बोला तुम्हारा हिंदुस्तान में कोई काम नहीं है, गो टू यूनाइटेड स्टेट्स। बंदा पहली बार यूनाइटेड स्टेट्स जा रहा था, पहले कभी यूनाइटेड स्टेट्स नहीं गया था। और वहां पर जाकर के उन्होंने ये हरे कृष्णा हरे रामा की मूवमेंट सेटअप की, एंड विद इन 11 years they had temples in almost 110 countries. And today you name a country and they have a presence. और कुछ कंट्रीज में तो लोगों ने इतनी संख्या में इनको आना शुरू कर दिया है कि यू कांट बिलीव इट। यस, चेंज हो रही है।
69 ईयर्स की एज में रेवोल्यूशन स्टार्ट किया उन्होंने। तो रिटायरमेंट एज तो 60 साल की है, 58 की आपकी, 60, ग्रेट। तो 69 ईयर में शुरू किया था उन्होंने। कौन कौन रिटायर होने वाला अगले 2 साल में? ओ मैडम भी हो रही हैं, आप भी हो रहे हैं, आप भी। ओके, 2.5 साल में हो रहा है, ठीक है। ओके, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज एज इज जस्ट ए नंबर। ओके, बी एक्टिव, रिमेन एक्टिव एंड यू विल रिमेन फिट आल्सो एंड यू विल डू वंडर्स। तो वो 69 में उन्होंने काम शुरू किया था, मैंने पहले ही शुरू कर दिया, मैं भी 68 का हूं अभी। उस लेवल का तो काम नहीं कर रहा, बट डेफिनेटली आई ट्राई माई बेस्ट टू डू वट एवर आई कैन। तो सच ग्रेट पीपल आर देयर। नाउ वन थिंग कॉमन अबाउट ऑल दीज पीपल, ऑल ग्रेट लीडर्स, दे आर ड्रीमर्स। सबसे पहली चीज, यू गॉट टू ड्रीम। Got to dream for your organization, your country, your society, your children. Depend upon what level you are. अब मोदी जी हैं, वो देश के लिए ही ड्रीम करते हैं, अपने परिवार के लिए ड्रीम नहीं करते वो। Let's accept it. So there are so many people. They dream for the country. They dream for the humanity. And some people they dream for the children. That's also perfectly okay, no problem. कि जो चीज मैं नहीं कर पाया, चलो मेरे बच्चे करें कम से कम, उनको मैं गाइड करूं, perfectly fine, nothing wrong in it. And those who are on the senior position, they dream for the organization. Let me take my organization to this level. And those who are heading their departments, they can think about their department. They can dream for the department. कि मैं अपने department में ये करूं, वो करूं. So all those things you can think of. Nobody can stop any one of us from dreaming big. Remember that. और हम जो मिडिल क्लास के लोग हैं अधिकतर मेरे ख्याल से यहाँ पर, अभी आप लोग रिच हो गए हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट जो बिगिनिंग रही होगी वो मिडिल क्लास वालों की होगी। क्योंकि अगर आप पहले से सुपर रिच होते तो आज यूएस में बैठे होते, या कहीं पर बड़ी बड़ी कंपनी आपने लगा लिए होते, इंडस्ट्री चला रहे होते। तो वी आर ऑल फ्रॉम द मिडिल क्लास, इंक्लूडिंग मी। आई एम फ्रॉम ए लोअर मिडिल क्लास। मेरी स्कूलिंग J&K की है बाय द वे, जम्मू कश्मीर में, अप टू प्री यूनिवर्सिटी। हम लोग एक कमरे वाले घर में रहते थे सिर्फ, और पढ़ने के लिए प्रॉपर कोई जगह नहीं थी। छत के ऊपर वो सुतली वाली खाट होती है ना, वो उसको बाउंड्री के साथ सपोर्ट करके बिछा देते थे, उसके ऊपर चादर बिछाते थे और उसके नीचे बैठ के पढ़ाई करते थे। पढ़ाई में अच्छे थे तो मेरे 2 दोस्त भी आ जाते थे साथ में। सुबह से लेकर शाम तक आज ट्रिग्नोमेट्री, आज फिजिक्स, आज केमिस्ट्री ये रगड़ देंगे। और जो मेरे 2 दोस्त थे वो भी, उनमें से एक एज ए मेडिकल सुपरिटेंडेंट PGI चंडीगढ़ रिटायर हुआ, डॉक्टर अनिल गुप्ता, और दूसरा IIT दिल्ली में डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर अशोक गुप्ता, सिविल इंजीनियर। तो वहां से हम लोग निकले हैं। तो मैं क्यों बता रहा था, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मिडिल क्लास वालों की होती है, उनके ड्रीम भी बड़े छोटे होते हैं। एक छोटा मोटा रीजनेबली अच्छा जॉब मिल गया, वेरी हैप्पी विद दैट, उसी में लगे रहो। एंड देन उस जॉब में भी सम पीपल दे डोंट वांट टू ट्रांसफर आल्सो। यहां से उधर ट्रांसफर, या नहीं भैया मैं तो इधर खुश हूं। और दिल्ली में तो यह बीमारी बहुत ही ज्यादा लोगों को, जरा ट्रांसफर कर दो एक जगह दूसरे को, रोना शुरू कर देते हैं। भाई लास्ट पोस्टिंग वाज इन दिल्ली बाय द वे, इन RK पुरम। तो एक बंदा मेरे पास एकदम बड़ा दुखी आया, सर बचा लो सर, मुसीबत आ गई। मैं क्या हो गया? सर इन्होंने मेरी ट्रांसफर उठा करके साउथ ब्लॉक में कर दी सर। मैंने कहा ले भैया तू RK पुरम है, साउथ ब्लॉक में ट्रांसफर हुई तो कौन सी बड़ी बात हो गई? नहीं सर मेरी वाइफ जो है ना, वो इधर सेवा भवन में काम करती है सामने, और मैं यहाँ पर RK पुरम में, ये आमने सामने दोनों इकट्ठे स्कूटर पे आते हैं। अब मैं कहाँ जाऊंगा सर साउथ ब्लॉक, जस्ट इमेजिन। सर प्लीज बचा लो सर। मैंने उसको ऐसा डांटा, मैंने कहा बे फौजी आदमी से तो बात कर रहा है, फौजी की ट्रांसफर 1 मिनट में उठा के करगिल में कर दी जाती है, बेचारा चू नहीं करता, परिवार को छोड़कर एकदम चला जाता है। और तुम सारे यहां से तुमको साउथ ब्लॉक भेज दिया है, बड़े क्या समझो। ऐसे लोग हैं दिल्ली के जो दुखी, दिल्ली कल्चर। और मैं भी आया था बाय द वे, बॉम्बे से आया था, उसमें लास्ट पोस्टिंग। दिल्ली में मेरी पहली पोस्टिंग थी और फिर वो लास्ट पोस्टिंग रही मेरी। सो आपका तो PSU है, इट्स अ वेरी गुड कल्चर, बट लेट मी टेल यू, गवर्नमेंट उधर एरियाज में कल्चर वाज वेरी बैड। 9 बजे ऑफिस होता था, लोग आराम से आ रहे हैं, 10 बजे कोई आ रहा है, कोई 10:30, कोई 11 बजे, और फिर 12 बजे लंच ब्रेक शुरू हो रहा है। खैर ये अलग बात है, मैंने उनको टाइट किया सबको, और लाइन पे लेके आया मैं उनको,
वो अलग स्टोरी है, वो फिर कभी फिर दोबारा सुनाएंगे. So idea is nobody can stop anyone else from dreaming big. So please tell your children, tell your juniors to dream big. That is very, very important. Though we are from middle class, but still dream big. And they say a dream has to be followed with action. Then it becomes a commitment. A dream with inaction is hallucination. मुंगेरी लाल के सपने जिसको बोलते हैं, वो नहीं होना चाहिए. Dream has to be followed with action. And they say build a dream, and the dream will build you. वो ड्रीम फिर खींच के लाता है. इवन अगर स्पोर्ट्स का एग्जांपल है तो ये सचिन तेंदुलकर जितने भी बंदे हैं, ये लोग सुबह 4 बजे उठ करके शुरू कर देते हैं अपनी प्रैक्टिस एंड ऑल दोस टाइप ऑफ थिंग्स. सो बिकॉज उन्होंने ड्रीम किया कि मुझे हिंदुस्तान की टीम में जाना है, उसके लिए काम करना पड़ता है. तो विच एवर वे यू आर, विच एवर फील्ड यू आर, जस्ट ड्रीम एंड फॉलो इट विद एक्शन. वो कहते हैं सपने वो नहीं होते जो रात को आते हैं, जो सपने वो होते हैं जो रातों की नींद हराम कर देते हैं. सोने ही नहीं देते. सोते सोते भी वही प्रोजेक्ट चलता रहता है दिमाग के अंदर कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है. एंड इट एक्चुअली हैपेंस व्हेन यू आर ऑब्सेस्ड विद समथिंग, मुझे ये करना है, उस दिन वो नींद नहीं आती अच्छी तरह से. और कई बार रात को सोते सोते उस सेमी कॉन्शियस में भी आपके कई प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन भी मिल जाते हैं. कई लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा. अच्छा, और सुबह उठ करके अगर इमीडिएटली आपने सॉल्यूशन नोट नहीं किया, थोड़ी देर के बाद भूल भी जाता वो कि साला वो क्या सॉल्यूशन आया था दिमाग में यार. तो इसलिए सबसे काम वही होता है कि उसी टाइम टक करके, अगर बीच में नींद खुल गई उसी टाइम नोट कर लो किसी डायरी में, क्योंकि वो सुबह उठ के यार कुछ आया तो था साला दिमाग में, पता नहीं क्या था वो. बीवी याद रखेगी, बीवी गाली निकालेगी कि मेरे को तो सोने दे, तू नहीं सो रहा तो. Now here are some steps for going from dreams to destination. So what are those steps? First is of course dream. Then convert that dream into strong desires. That's very important. Burning desire जिसको बोलते हैं ना, उसमें. That will give you the direction. And then you have to follow that direction with dedication, determination and discipline. और last लिखा है deadlines. Many times your dream may be a little bit vague. You don't know exactly how to reach there. So what do? Divide your dream into small, small deadlines. So आपने मान लीजिए अपने ड्रीम्स को 10 डेडलाइन में बांटा, तो फर्स्ट डेडलाइन पर कैसे पहुंचना है वो बड़ा फंडा क्लियर है. सेकंड का पता नहीं, अभी मालूम नहीं है थर्ड का, लेकिन जब आप फर्स्ट पर पहुंच जाओगे तो सेकंड का रास्ता क्लियर हो जाएगा. और सेकंड डेडलाइन पर पहुंचने के बाद थर्ड का रास्ता क्लियर हो जाएगा. दिस इज वे यू कीप मूविंग अप. एग्जैक्टली सेम वे जैसे दिल्ली में धुंध होती है सर्दियों में, तो कई बार 10 मीटर भी दिखाई नहीं देता, तो क्या करते हो, क्या घर में बैठ जाते हो? नहीं, ऑफिस तो जाना है. यू जस्ट गो दोस 10 meters, then next 10 meters is visible, next 10 and then next 10 and you reach your office. Exactly same way you keep going from one deadline to the other deadline. अब थोड़ी देर के लिए मान लें कि हमने अपने ड्रीम को 10 डेडलाइंस में बांटा था, but we could achieve only 5 or 6 or 7. Still it is good. At least you went up to that level, at least in that direction. अगर ड्रीम ही नहीं होगा तो फिर तो आप जहां पर हो वहीं पर बैठे रहोगे. आप जिधर हवा का थपेड़ा आया उधर जैसे शिप को ले जाता है बिना जिसका इंजन खराब हो, रडर ना हो, तो वैसी जिंदगी भी चलती रहेगी, कभी इधर कभी उधर कभी उधर. So best is to have dream, have all this and follow it with those 3 things: dedication, determination and discipline. Now all those deadlines जिसकी बात कर रहे थे हम लोग, they become your goals and you have to pursue them with passion. जुनून जिसको बोलते हैं, जुनून के साथ फॉलो करना है. जुनून मतलब हल्का सा पागलपन. जुनून भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिंदगी में कुछ भी अचीव करने के लिए. It's very, very important. And how high our goal should be? They should be high enough to motivate. At the same time, realistic enough to avoid discouragement. Realistic होना भी बहुत जरूरी है. अब इस एज में आकर के अगर मैं बोलूं कि मैं हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम में जाना चाहता हूं, तो ये तो बेवकूफी होगी ना मेरे लिए. That's unrealistic. Today my dream has to be in relation to what I'm doing. अभी आजकल मैं किताबें लिखता हूँ, कॉलेज में लेक्चर देता हूँ,
सो ठीक है, अगर मैंने आज 250 कॉलेज और यूनिवर्सिटी में किया, नेक्स्ट गोल इज टू क्रॉस 300 नाउ. आई हैव रिटन 3 books now, working on 4th and 5th one also. In that field, my goal should be. So you got to be realistic also, that's also important. And they say goals must be smart. Anybody knows the full form of SMART? Specific, Let's give a chance to the lady, chalo, ठीक है. specific, measurable, attainable, realistic, and T. time bound. चलो मैडम को प्राइज दे देते हैं. क्या नाम है मैडम? Sony Mehta. सोनी. सोनी जी के लिए जोर से ताली बजाई जाए. ग्रेट. And your prize is here. Smiley ball. Great. So if our goals are smart, you are bound to achieve that, let me tell you. Bound to achieve that. Nobody can stop you. And this is applicable in every life, every area. आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी है, उसके लिए भी है. आपके बच्चे की शादी है, बहन की शादी है, भाई की शादी है, वो इंतजाम करना है, बिल्डिंग बनानी है, सबके लिए स्मार्ट गोल. Got to be specific, measurable, realistic, relevant, time bound. Any area. बच्चे जेई की तैयारी कर रहा है, स्मार्ट गोल. या किसी और एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, नीट वगैरह की तैयारी कर रहा है, स्मार्ट गोल्स. सो इसको मुट्ठी में बांध लीजिए. आपके बच्चों के भी काम आएगा, छोटे भाई बहन के भी काम आएगा, आपके भी काम आएगा. हर एरिया में स्मार्ट गोल रखिएगा. जैसे चांसेस ऑफ फेलियर बिकम मिनिमल व्हेन योर गोल्स आर स्मार्ट. फेलियर्स फिर भी हो सकता है. Was it a smooth cake for all those people? Is it that they never failed? जिनकी हमने वो वीडियो देखी या बाद में नाम देखे, they also failed because for them they said failure is a part of life. A winner is not the one who never fails, but the one who never quits. हार नहीं मानूंगा, that spirit has to be in their mind. ये जो फेलियर जिसको हम बोलते हैं, एक्चुअली फेलियर नहीं होता, जस्ट स्टेपिंग स्टोन टू द सक्सेस बेसिकली. जस्ट थिंक फ्रॉम दैट एंगल कि यस आई लर्न समथिंग फ्रॉम हियर. इनका नाम जानते हो इनको? एडिसन साहब. ही इन्वेंटेड द लाइट बल्ब आफ्टर 2000 एक्सपेरिमेंट्स बिफोर ही गॉट इट टू वर्क. 2000 एक्सपेरिमेंट लोग बोलते हैं, थोड़ी एग्जैजरेशन होती है इसमें, चलेगा. एंड जब वो बल्ब बन गया तो एक यंग रिपोर्टर आस्क्ड हिम how it felt to fail so many times. उनका आंसर क्या था? I never failed once. I invented the light bulb. It just happens to be a 2000 step process. That's what he said. Just happens to be a 2000 step process. Just see the thinking of the man. इनको पहचानते हैं सभी लोग? Everybody knows him. Winners compete against themselves. They better their own records constantly. पहले मैंने 80 मीटर फेंका था, अब 82 फेंकूंगा, अब 85 फेंकूंगा, अब 89 फेंकूंगा, 90 फेंकूंगा, जो भी है. Compete against themselves. They don't compete with others. Because the moment you start competing with others, तो rivalry पैदा होती है, jealousy पैदा होती है. अरे इसने तो बड़ी गाड़ी ले ली यार, साला पता नहीं कहाँ से ले आया ये बड़ी गाड़ी. क्या कर लोगे भाई? हो सकता है उसके ससुर ने दी हो, या उनकी अपनी कुछ जायदाद हो, कुछ हो, बेचा हो, कुछ हो. यार Why are you bothered? आप अपना लेवल, कल को मैं इस लेवल पे था, मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं फिर यहाँ अपने बारे सोचो यार, और अपना लेवल ऊपर करते जाओ. दूसरे को देख करके जलने का क्या फायदा? क्यों मैडम, ठीक बोला नहीं? दूसरे को सडनली देखा कोई डायमंड लेकर के आ गई है, हालांकि मेरा हस्बैंड तो आज तक नहीं दिया. So don't compare with others. ये जो कंपेयर और कंपैरिजन होता है, बच्चों में भी ये भावना पैदा करनी है. बाय द वे लेट मी टेल यू, बच्चों में भी डिप्रेशन नहीं आना चाहिए. उनका ना बेटा तेरे 80% मार्क्स आते थे, नाउ यू ट्राई फॉर 85, नाउ यू ट्राई फॉर 90, नाउ यू ट्राई फॉर 95. दूसरों के साथ कंपीट करते रहना काहे को? बिना बात के जेलसी क्यों पैदा करनी बच्चों में आपस में? वो देख उसने ऐसा किया. भाइयों में भी बहनों में भी लोग करवा देते हैं, माँ बाप भी कई बार. देख वो तो ऐसा कर रही है, तू क्यों नहीं कर सकती? Please don't do that. Every child is different. Let's accept it. मेरी 2 बेटियां हैं. मैंने भी एक टाइम सोचा था कि मैं भी उनको IIT में भेजूं. But I suddenly realized 9th and 10th standard itself कि they are not IIT material. So मैंने कहा बेटा जो आपको फॉलो करना है करो.
बड़ी वाली ने बीबीए किया, एमबीए किया, वेरी गुड, फ्रॉम ए ऑर्डिनरी कॉलेज। छोटी वाली जर्नलिज्म में चलेगी एमईटी के थ्रू, डूइंग वेरी वेल। दोनों अपने अपने फील्ड में बहुत बढ़िया कर रही हैं, फर्स्ट क्लास। अगर मैं जबरदस्ती उनको कोशिश करता, इट वुड हैव बीन डिजास्ट्रस। सो हर बच्चे को आइडेंटिफाई कीजिए। अब बड़े वाली बेटी की 2 ट्विन डॉटर्स हैं, दोनों 8-8 साल की हो गई हैं, दोनों अलग टोटली, लेट मी टेल यू, दोनों अलग। अब हम उनको कंपेयर करते रहे आपस में एंड ट्राई टू कम्पीट, नो। सो जस्ट एक्सेप्ट देम एज दे आर, दोनों को ग्रोथ करने दो। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग आपने सुना होगा बचपन से भी, अभी भी टीचर्स वगैरह सब लोग बताते आए हैं, बड़े लोग भी बताते हैं। एंड मेरा भी फंडा है, व्हाट इज रॉन्ग विद हाई लिविंग एंड हाई थिंकिंग? आई डोंट फाइंड एनीथिंग इन रॉन्ग। बढ़िया से बढ़िया गाड़ी खरीदो, बढ़िया से बढ़िया बंगलो बनाओ, लेकिन आपकी थिंकिंग हाई रहनी चाहिए, दैट्स द कंडीशन। और जो आप पैसा भी कमाओगे विद ऑनेस्टी, विदाउट एक्सप्लॉइटिंग एनीबॉडी, ईमानदारी के साथ, that's important. So from today onwards, let's be an aimer and not a blamer. दुनिया में बहुत लोग हैं जो हर चीज को ब्लेम करते रहते हैं। अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी ब्लेम करेंगे, अपने एचओडी को ब्लेम करेंगे, बॉस को ब्लेम करेंगे, कहीं गड़बड़ हो जाएगी बीबी को ब्लेम करेंगे, हस्बैंड को ब्लेम करेंगे। ये ब्लेम गेम खत्म कर दीजिए। बच्चों के नंबर नहीं आते, टीचर को ब्लेम कर देते हैं। अरे सेम क्लास में दूसरे बच्चे भी तो हैं भैया जिनके अच्छे नंबर आए हैं, बट नहीं, इजी, टीचर ने पढ़ाया नहीं ठीक तो मैं क्या करता। अरे भैया कोई टीचर सबको पढ़ा रहा था क्लास में, सेम क्लास में 90% बच्चे भी लाए हैं। सो दिस ब्लेम गेम शुड स्टॉप। बी हैप्पी वेयर एवर यू आर। लोग कैंटीन में खाना खाना जाते हैं, वहां भी क्रिप मारना शुरू कर देते हैं, बेकार खाना, यूजलेस खाना, ये खाना होता है क्या यार। अरे एंजॉय यार। थोड़ा धूप में चलना पड़ गया तो पसीने आ गए, उसमें भी दुखी होते रहते हैं। अरे यार इतनी धूप, इतना पसीने, ऐसे कोई तरीका होता है क्या? मैं कहता हूँ यार उसको भी एंजॉय करो ना यार, क्या पसीने आ रहे हैं गुरु, मजा तो आ गया आज। अगर भीग गए तो उसमें मजा करो बारिश में, अरे गुड यार, जा करके समोसा खाएंगे, बढ़िया बढ़िया पकौड़े खाएंगे, मजा आ गया, क्या बढ़िया भीगे आज, क्यों जी? तो इट इज हाउ यू टेक लाइफ। तो ये क्रिब मारने की जो कुछ लोगों में आ जाती है, तो उसको बंद कर दो बेटा, ठीक है? क्रिप तो ही मारते हो तुम, तुम्हारी फ्रेंड्स मारती हैं, पक्का कुछ तो मारती होंगी, ये हो ही नहीं सकता कि कोई ना मारता हो। मेरा एक दोस्त है बेंगलोर में, मेरा बैचमेट, डेवी बैचमेट, वो जैसे उसको फोन आएगा, लेट मी टेल यू माय ऑल फ्रेंड्स अवॉइड हिम, बट मैं उसको अवॉइड नहीं करता। मैं कहता हूँ यार जब मैं दुनिया को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये तो मेरा दोस्त है यार, मेरा बैचमेट है, लेकिन वो फोन उठाते ही रोना शुरू कर देगा, जेतली यार बुरी हालत हो गई यार, मर गया यार मैं, एकदम एक रोना, दूसरा रोना, तीसरा रोना, चौथा रोना। अब मैं चूंकि इस फील्ड में आ चुका हूं कि लोगों को सुधारने का बीड़ा उठाया मैंने, तो मैं सुनता रहता हूं और फिर कोई एक छोटी मोटी चीज उसको बताने की कोशिश करता हूं कि ये शायद ये लाइन पे आ जाए। बट देयर आर सम पीपल हु आर हैबिचुअल कंप्लेनर्स, हैबिचुअल। So my says from today onwards, if some of you are doing it, please, from today onwards, no complaints, no cribbing. Because they say 50% of the people don't care if you have a problem. 50% of the people don't care if you have a problem, and the other 50% are happy that you have a problem. Actually में खुश होते हैं कि यस फंसा, बड़ी डींगे मारता था ये, अब इसको पता चलेगा। क्यों जी? होते हैं ना? तो इसलिए कोई जिंदगी में, मैं कहता हूँ सीरियस प्रॉब्लम भी आ जाए तो अपना यार दोस्त, क्लोज फ्रेंड, माँ बाप, बच्चों के साथ डिस्कस कर लो। दुनिया में ढिंडोरा पिटाने का फायदा नहीं है। Nobody is bothered about your problems, let me tell you. Nobody. Yes, close friends, definitely, yes. Because you may get some good advice. Why not? Family members, yes, why not? But दुनिया में ढिंडोरा नहीं पिटाने का। Have a focused approach in your life. There is a story of small मेंढक्स जो जंगल में रहते थे और बरसात में खासकर बहुत ज़्यादा शोर मचाते थे, टर 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 बहुत ज़्यादा। तो सारे जंगल के जितने भी जानवर थे उनका मजाक उड़ाते थे। यूजलेस, गुड फॉर नथिंग, लिटिल फ्रॉग्स एंड मेकिंग सो मच नॉइज, रात को सोने नहीं देते। तो जैसे ही उनको बोला गुड फॉर नथिंग, यूजलेस, उनका भी सेल्फ एस्टीम जाग गया। उन्होंने बोला ए डोंट से यूजलेस। उन्होंने बोला यू आर यूजलेस, यार यू कांट डू ब्लडी एनीथिंग। दे सेड ए वी कैन डू एनीथिंग।
हालांकि उन्होंने मेरा लेक्चर नहीं सुना था वीकेंड वाला, फिर भी जोश में आगे बोल दिया उन्होंने वी कैन, हे यू कैन, कहते यस। तो जो बंदर थे जो मैक्सिमम मजाक उड़ाते थे, उन्होंने बोला कैन यू क्लाइंब दिस टावर, तो जोश में आके बोल दिया यस वी कैन, हे यू कैन क्लाइंब दिस टावर, कहते यस। तो जनाब अनाउंसमेंट होगी कमिंग संडे मॉर्निंग 9 o'clock, these frogs are going to go up the tower, all animals please come and just have a fun। मिस्टर भालू को रेफरी बना दिया और उन्होंने 9 बजे विसल बनाई और सब ये छोटे छोटे फ्रॉग्स ऊपर चढ़ना शुरू हो गए। एंड ऑल द एनिमल शाउटिंग दे कांट डू इट, दे कांट डू इट, दे कांट डू इट, ऑल एनिमल्स। एंड इट एक्चुअली हैपेंड, एक एक करके ये फ्रॉग थोड़े गिरने शुरू हो गए। फाइनली एक फ्रॉग रह गया, सिर्फ ये छुटकू फ्रॉग लास्ट वाला जो खड़ा है साइड में। दिस फ्रॉग kept on climbing, बाकी सब फ्रॉग गिर चुके हैं। They said even he will fall down, even he will fall down, he can't do it, but this little frog went up to the top and then slowly नीचे आना शुरू हो गया। जब नीचे पहुंचा तो प्रेस रिपोर्टर्स were ready, how did you do it, how did you do it, and they realized this little frog was deaf from the ears, he was not able to listen to those negative suggestions। So the moral of the story is when somebody is trying to discourage you, उसके लिए कानों से बहरे हो जाओ। अपनी धुन समा करके जो भी धुन ली आपने उसको करना है, बाकी सब लोगों के लिए यू आर डेफ। सो लिसन टू दोज पीपल हु मोटिवेट यू, डोंट लिसन टू दोज पीपल हु डीमोटिवेट यू। सो दैट्स द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी। डेफ हो जाना उन लोगों के लिए जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। Motivate yourself to achieve physical and mental toughness. Very important, physically and mentally both we should be tough. If any one of you feel कि अगर आज पूरी रात मुझे जागना पड़ गया और next day मैं ऑफिस नहीं जा पाऊंगा, that means you are not mentally and physically tough. Make yourself इतना mentally and physically tough, अगर पूरी रात भी जागना पड़ जाए किसी काम के लिए, next day still you should be able to come to the office. इतना जबरदस्त होना चाहिए। हमारा फौजी आदमी 3-3, 4-4 दिन लड़ाई लड़ सकता है, वो इतना फिजिकली टफ हो जाता है। और मेंटली, फिजिकल से ज़्यादा मेंटल टफनेस इज मच मोर इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं फिजिकली तो फिर भी चल जाता है, बट मेंटली यू हैव टू टेल योरसेल्फ, हे आई कैन डू इट, एंड यू आर एबल टू डू इट। कॉलेज में IIT खड़गपुर वी यूज्ड टू हैव ए वॉकिंग रेस 5 kilometers, ही कैन रिलेट। तो मेरा हॉस्टल RK हॉल था, तो उनके पास कोई वॉकिंग के लिए बंदा नहीं मिल रहा था। एंड आई वॉज बेसिकली ए जीरो स्पोर्ट्समैन, लेट मी टेल यू। एक कबड्डी थोड़ी सी खेल लेता था और कुछ नहीं मैं खेलता था, और स्टूडेंट लीडरी वीडरी करता रहता था मैं। तो उनको लगा ये जेतली यार तू बड़ी तेज चलता है, यू रिप्रेजेंट द हॉल यार। तो मैंने भी सोचा चलो यार आज तक मैंने किसी भी चीज़ में हॉस्टल को रिप्रेजेंट नहीं किया, तो चलो वॉकिंग रेस में तो रिप्रेजेंट कर ही दूंगा। तो उन्होंने मुझे चेस्ट नंबर दे दिया और बोला 5 बजे पहुँच जाइए स्टेडियम। तो मैं भी जिम खाना में बिजी रहता था, आई वॉज अ स्टूडेंट लीडर। तो जैसे ही 5 बजने 10 मिनट से बंदा आया, जितनी चल यार, सब लोग आ गए हैं। मैं भी जाके खड़ा हो गया लाइन में। तो जैसे ही उन्होंने पिस्टल शुरू की तो मैं एकदम फुल स्पीड पे चलना शुरू हो गया। स्टेडियम का जनाब पहला राउंड, VK जेतली इज गोइंग फर्स्ट राउंड में। लेकिन चूंकि मैं स्पोर्ट्समैन नहीं था, मैंने कोई वार्मिंग अप नहीं की हुई थी। जैसे ही फर्स्ट राउंड कंप्लीट हुआ फुल स्पीड के ऊपर, सेकंड राउंड में मेरी टांगों ने कीर्तन करना शुरू कर दिया। तो मेरा जो सेकंड वाला पीछे था मेरे साथ में आ गया, थोड़ी देर में आगे आ गया। मैं कोशिश कर रहा हूँ उसको कोप अप करने की, आई एम नॉट एबल टू डू इट। फिर तीसरा भी आ गया। तो मैंने दोस्तों को बोला भैया मैं तो बाहर आ रहा हूँ। कहते कम ऑन जेतली, RK का टेम्पो हाई है, हमारे वहाँ पे चलता है RK का टेम्पो हाई है। मैं कहा क्या टेम्पो हाई है यार, मैं चला नहीं जा रहा। सेकेंड राउंड समहाउ मैंने कंप्लीट किया, लेट मी टेल यू। 3 आदमी तब तक मेरे आगे जा चुके थे। थर्ड राउंड में लोग मेरे को जोश दिए जा रहे हैं, हॉस्टल वाले, मेरे से नहीं चला जा रहा। स्टेडियम के दूसरी तरफ जहां पर कोई नहीं था, मैं चुपके से बाहर आ गया। तो मेरे हाल वाले कितने साले पूरा तो कर लेता कम से कम। मैंने कहा यार चला ही नहीं जा रहा, मैं क्या करूं। Now that was my condition when I was in IIT. And then it so happens I joined Indian Navy. और इंडियन नेवी कोचीन में जब ज्वाइन किया, आई स्टिल रिमेंबर वी ज्वाइन ऑन ए फ्राइडे आई थिंक। संडे मॉर्निंग 10 kilometers वी हैड टू रन, 10 kilometers। और जो हमारा कोच या जो सीनियर सेलर था जो हमको, इफ यू डोंट कम बाय सो एंड सो टाइम जेंटलमैन, यू विल बी रनिंग अगेन इन द इवनिंग ऑल्सो।
And the way they give you command, I tell you, is very horrible. And I tell you, हम 10 किलोमीटर पहले ही दिन भागे. कभी चल रहे हैं, कभी भाग रहे हैं, कभी चल रहे हैं, भाग रहे हैं. Somehow managed to come within that time. Somehow managed. ये अलग बात है, टांगों की बुरी हालत हो गई. उसके बाद पूरा हफ्ता we were, had horrible time. But again, next Sunday आ रहा था, उस संडे को फिर 10 किलोमीटर. And every Sunday we were running 10 kilometers. और अब स्थिति ये है कि अभी आप मुझे बोलो कि जितनी 5 किलोमीटर वॉक करना है, and I'm ready for you. I can do that. And recently, of course, it was a very small one. Just 1 kilometer walk in गुड़गांव में. मेरी बेटी की सोसाइटी में वॉकाथन थी. तो मैंने कहा, बेटी तेरी वहाँ पे चल, मैं भी चलता हूँ. 1 किलोमीटर का ही था. तो हम चल पड़े जनाब वॉकाथन में. और 1 किलोमीटर में हम फर्स्ट चले आ रहे थे. एक और बंदा मेरे साथ आ गया. तो फिर हम दोनों इकट्ठे चलते आ रहे थे. मैंने कहा, क्या करते हो? कहते, मैं इंडियन नेवी में था. अरे मैं कह रहे हो, वाह. वो भी इंडियन नेवी का निकला. एंड ही वाज अ डाइवर. डाइवर्स आर वेरी टफ पीपल. सो बोथ ऑफ अस केप्ट ऑन वॉकिंग टुगेदर. एंड बाकी लोग काफी पीछे थे. एंड जब फिनिशिंग लाइन आई तो मैंने थोड़े से लंबे पाँव किए और मैं फर्स्ट आ गया. वो साथ साथ ही सेकेंड आ गया. So, though it was just 1 kilometer, but I can do today, आराम से 5 kilometer also I can do it. और खड़गपुर में एलुमनी मीट जब होती है, we have a 2.8 kilometer का वो periphery walk, which I do it always, remembering those days when I couldn't complete even. तो कहने का मतलब यह कि माइंड जो है वो हार जाता है, बॉडी इतना नहीं हारती. तो माइंड को एकदम टफ बनाना वो भी बहुत जरूरी है. Now here is one 8 C's formula for success. Communication is very, very important. And for communication, there's an ABC formula. Accuracy, brevity, and clarity. जो भी आप बोलते हो, लिखते हो, ईमेल भेजते हो, should be accurate, कम से कम शब्दों में, and clarity, no double meaning, no triple meaning. And effective communication is a two-way process. वो पेपर है? जस्ट एक एक पेपर सबको बांट दीजिए. ये इधर दे दीजिए. जस्ट one पेपर टू एवरीबॉडी. Any more spare paper with anybody? पीछे मिल गए? Anybody who doesn't have? सबको मिल गया? Anybody needs paper? सबके पास मिल गया. Okay, you don't have. Okay. Some more paper? Yes, sir. Anybody who doesn't have? Okay. Now, you don't have to read what is written on this. Forget about it. It's just a rough paper. Okay, आप लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे. I know that. But no. Paper. सर को पेपर नहीं दिया. अरे नहीं. Okay. Now, you have to follow the instructions which I give you. Okay. Keep your pen on the side or in your pocket. पेन की जरूरत नहीं है. Hold the paper in your right hand. Now, whatever I give you the instructions, you will not ask me a counter question. You will just follow the instructions which I am giving you. Agreed? You will not ask me any question. The first command is close your eyes. Fold your paper. Fold your paper.
No questions to be asked. Tear from the center. Tear top left. Tear bottom left. Tear bottom right. Fold it again. Eyes closed. Tear from the center. Tear top right. Okay. Now open your eyes and show what you have in your hand, and everybody just see what you have and what others have. देखिए क्या बढ़िया बढ़िया डिजाइन बने, कितना सुंदर डिजाइन है. आई लाइक दैट डिजाइन. और ये देखिए चीथड़े हो गए हैं पेपर बुरी तरह से, ये भी चीथड़े हो गए हैं एकदम. ये भी एकदम बहुत बढ़िया डिजाइन. वेरी गुड. बुरी हालत. वेरी गुड. ग्रेट. वो डिजाइन दिखाओ एकदम बहुत बढ़िया. देखो कितना बढ़िया सुंदर डिजाइन बनाया उन्होंने. वेरी नाइस. वेरी नाइस. गुड. खोल को दिखाओ ना यार जरा. यस. आई शाउट द वेरी गुड डिजाइन. फोटोग्राफर प्लीज इनकी फोटो सब अपना अपना दिखाओ जरा. Nobody इसे तो एकदम ही सभी दिखाओ अपना अपना प्लीज. एंड प्लीज कैमरामैन टेक देयर फोटोग्राफ. यस गुड. वेरी गुड. नोबडी इज रॉन्ग. लेट मी टेल यू हियर नोबडी इज रॉन्ग. एवरीबडी इज करेक्ट. अरे वाह ये देखो इसका क्या हाथ है. गुड. नाउ what happened exactly? Instructions were same for everybody, but results were different. Instructions were same, but results were different. Why? Because it was a one-way communication. It was not a two-way communication. And effective communication is a two-way process. जिसमें आप पूछते हो भाई साहब ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे. तो it's a dialogue basically. It's a two-way process. Then अगर सबकी आंखें खुली होती और मैं आपको अलाउ करता, I tell you there could have been a almost same design सबके. Because the beginning itself I told you, close your eyes and nobody will ask any question. That is why we had जितने बंदे उतने design. And every design is correct. And every design is जो भी समझो उसको, nothing is wrong. अब इसको कचरे को फेंकना नहीं है नीचे, अपने पॉकेट में डाल लीजिए या कहीं भी डाल लीजिए, फेंकना नहीं है. So always remember, when boss calls you for a meeting, carry a छोटा सा pad and pen with you. Keep noting down whatever he or she has told you. And when you go back to your room, एक email भेजिए boss को कि sir or madam आपने मुझे ये instruction दी. I have understood this. This is how it is to be done. If it is exactly the same what you have understood, he'll say, yeah, good. Please go ahead. Or he or she will say, you have missed another point. I told you this also to do it. Or this was not yours, this was for somebody else. Or this is not like this has to be some way else. So then it's a two-way communication and there will not be any confusion. Because आप लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करते हो एजुकेशन के फील्ड में इतनी, तो अगर कोई भी गलती हो जाती है कुछ भी, तो इट्स नॉट डिजायरेबल. Client will become unhappy and then he'll give a complaint. It doesn't good for your organization. Ineffective communication anywhere can lead to confusion and anger, misunderstanding, hostility, and even alienation. कॉलेजेस के अंदर स्टूडेंट्स की कई बार स्ट्राइक्स वगैरह हो जाती हैं किसी भी चक्कर में, तो आई स्ट्रेट अवे आस्क दोज पीपल, डीन ऑफ स्टूडेंट अफेयर हो या डायरेक्टर हो, कि भाई साहब इट्स अ ब्रेकडाउन ऑफ कम्युनिकेशन मोस्ट प्रॉब्ली. अगर टीचर्स भी आपके साथ खुश नहीं है तो दैट मीन्स यू हैव नॉट कम्युनिकेटेड विद देम प्रॉपरली. Communicate, communicate, and communicate. With any organization, I tell you, things will run smoothly. Second C, that was first C is communication, second is concentration. जो भी काम करना है फुल कंसंट्रेशन के साथ करना है और अपनी तरफ से ये 100% फिट है, बढ़िया मैंने काम किया है. ये नहीं सोचना यार बॉस ने तो चेक करना ही है, अपने आप गलती निकाल लेगा.
ये मन में नहीं सोचना। ये सोचना है कि बॉस को फुल स्टॉप और कामे की भी गलती निकालने का मौका नहीं मिलना चाहिए इसमें। ये सोच के इतनी कंसंट्रेशन के साथ काम करना है कि ताकि उसको भी कॉन्फिडेंस आए, यार इस बंदे को एक बार देंगे चीज तो दैट इज स्ट्रेट अवे आई कैन सेंड टू द क्लाइंट स्ट्रेट अवे। दैट कॉन्फिडेंस द बॉस शुड हैव इट। courteous behavior with everybody, सीनियर जूनियर अपने लेवल सबके साथ courteous behavior बहुत इंपॉर्टेंट है। That should become a part and parcel of our personality, कि सबके साथ हमको courteous behavior देना है। And follow the culture of the organization where you are serving. I'm sure over a period of time even Edsil has a culture of its own. I don't find anybody wearing jeans here. Am I right? Nobody wears jeans. Probably that is a culture. And it's a good culture. क्योंकि हो सकता है बच्चे कई ये सोच रहे होंगे हमको जीन्स नहीं पहन देते यहाँ पर, वो इतनी पहनी हुई है इधर तो। ये लेने वाले हैं, टीसीएस वाले हैं, इसलिए इनको अलाउ किया हुआ है। ओके फाइन, ठीक है। चलो किसी की फटी हुई जीन तो नहीं है ना, वो जो आजकल वो नहीं है, ठीक है। बट अदरवाइज द कल्चर सेज कि नो जीन्स इन द ऑफिस, फाइन, गुड कल्चर, परफेक्टली फाइन। In one of the college, the so-called private college, modern college I went, one of the professor, lady professor coming with skirts, और वो भी काफी छोटी सी स्कर्ट। मैंने कहा मैडम जय हो, ये बच्चे पढ़ाई करेंगे उसी को देखते रहेंगे, वो भी कॉलेज, छोटे बच्चे स्कूल के बच्चे तो भी बात है। तो आई थिंक वी शुड हैव दैट कंट्रोल इन अवर सेल्व्स, फॉलो द कल्चर, दैट्स ओके जहां भी है। बट अगर कल्चर नहीं है तो थोड़ा डेवलप कीजिए चीजें। दिस हैज टू बी डन, दिस हैज नॉट टू बी डन, लेट इट बी देयर। कॉन्फिडेंस, वी मस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन अवर सेल्व्स, ओनली देन वील हैव कॉन्फिडेंस इन अवर कोलीग्स, अवर सबऑर्डिनेट्स, अवर सीनियर्स। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस हैपेंड टू बी बाय द वे कवर पेजेस ऑफ माय 2 books. And by the way, these books are available free of cost. You don't have to buy. From National Digital Library के ऊपर free of cost available हैं. That's being managed by IIT Kharagpur. Common sense बहुत ही important है। कई बार हम लोग जब थोड़ा ज़्यादा educated हो जाते हैं तो common sense को थोड़ा भूल जाते हैं। Common sense को कभी नहीं भूलना। That's very, very important. And collaboration. Nobody can do big things without collaboration. Collaboration of individuals, collaboration of organizations, collaboration of departments is very, very important. And last is celebration. You must celebrate when you complete a project, when you achieve some success. किस दिन कोई contract आया, किसी के साथ आप bid कर रहे थे, contract आ गया, celebrate. If you are not celebrating, please start doing it. And celebration doesn't mean daru party, by the way. It could be simple, a cup of tea and a samosa. That's good enough. And then clapping for everybody, all those who have worked. So that's a celebration. You must celebrate. Because celebration से energy आती है, enthusiasm आता है for the next project. If you are doing already celebrations, please continue. If you are not doing it, start doing it. बच्चों के लिए भी, भाई बहनों के लिए भी, घर में भी सेलिब्रेट कीजिए। जब कोई बच्चा अचीव करे, छोटी मोटी ट्रॉफी लेके आए स्कूल से, सेलिब्रेट। चलो आज सब लोग बाहर खाना खाने चलेंगे, सब लोग, इसको आज ये ट्रॉफी मिली है बच्चे को। बच्चे को भी जोश आता है, यस अगली बार फिर मैं करके दिखाऊंगा। सक्सेस, सक्सेस इज नॉट ऑलवेज गारंटीड डिस्पाइट ऑल दोज 8 steps which I have told you. Sometimes you may still fail. तो जो मैंने पहले बताया था उसी को याद रखना है। Failure is a part of life. To err is human. Learn from the mistakes of others. You won't live long enough to make all of them yourselves. गलतियां होती हैं, लेकिन दूसरों की गलती से सीखना जो है, उस आदमी को ग्रेट आदमी बोला जाता है। Here's a story of HT. What is HT? Hare and tortoise की स्टोरी है। तो जनाब ये टॉर्टोइज के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा, सॉरी हेयर के ऊपर क्लिक। ये स्टोरी तो आप सबने सुनी होगी। क्या मॉरल है उसका? सभी ने? उसका एक्सटेंडेड वर्जन किसने सुना हुआ है?
आपने सुना हुआ है, एक्सटेंडेड वर्जन. Okay, only one person. Okay, so the story goes like this, that there was a tortoise and there was a hare, and they decided to run and then find out who is faster, and they set a route, and hare ran very fast, and then it was the month of June. एक पेड़ था, उधर के नीचे सोचा थोड़ी देर मैं वेट कर लेता हूँ, and he felt asleep. ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, और tortoise आया, धीरे धीरे देखा सो रहा है, without disturbing him, reached the finishing line and won the race. And the moral of the story is what you all said it. That's fine. अब just imagine, खरगोश कछुए से हार गया, तो खरगोश की बीवी और उसके बच्चे उसको जीने देंगे क्या? पापा हार गए कछुए के साथ, शर्म आनी चाहिए. हम बच्चों के साथ खेल नहीं सकते, बाहर नहीं जा सकते, नाक नहीं दिखा सकते, अपनी अभी शक्ल नहीं दिखा सकते, कछुए से हार गए, छी. अब वो भी बेचारा सोच रहा है. He was obviously disappointed. He did some thinking. He felt, yes, so I was overconfident, I was careless, and I was lazy. अगर मैं इन 3 चीजों को छोड़ दूं तो मैं कभी भी हरा सकता हूं. तो बड़े गट्स लेकर के, काफी हिम्मत करके कछुए के पास जाता है. "ए, बात सुन यार, तू जीत तो गया, एक बार और." अब वो बेचारा सिंपल था, उसने चैलेंज कर दिया, उसकी बातों में आ गया, तो कछुआ तैयार हो गया भागने के लिए. और अब की बार क्या हुआ, कछुआ फुल स्पीड से भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन खरगोश इतना तेज भागा कि विद इन नो टाइम ही वाज एट द फिनिशिंग लाइन एंड कछुआ वाज वे बिहाइंड. सो moral to the story is, it is good to be slow and steady, but fast and consistent will always beat the slow and steady. So that is the moral of the story. You got to be fast and consistent. जी आजकल वो क्रिकेट में 2020 का ज़माना आ गया है, वो जो टेस्ट क्रिकेट वाला टुक टुक करते रहो सारा दिन, वो ज़माना चला गया. पहले बॉल के ऊपर ही चौका छक्का मारने वाला ज़माना है. यू हैव टू बी फास्ट, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट आल्सो. अब जस्ट इमेजिन, अब खरगोश जीत गया, तो अब कछुआ जो जीता हुआ था वो हार गया. अब कछुए की बीवी बच्चे उसको जीने देंगे? पापा अच्छे भले जीते हुए थे, क्या जरूरत पड़ी थी दोबारा भागने की? पता वो साला तेज भागता है, काले कुत्ते ने काटा था क्या? वो भी सोच रहा है यार गलती होगी सारी, मैं क्यों मान गया इसकी बात, पता ये कभी भी हरा सकता मुझे, फिर भी मैं इसकी बातों में आ गया. तो उसने सोचना शुरू किया क्या किया जाए. एंड देन उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि देयर इज नो वे आई कैन बीट द हेयर इन नॉर्मल रेस. सो दिमाग की घंटी बजी कि यस, अब कछुआ दोबारा गया उसको. अब उसको आइडिया आ गया था, कहता बात सुन, एक बार तू जीता, एक बार मैं जीता, अब एक बार थर्ड टाइम रेस कर लेते हैं. अब खरगोश को दोबारा कॉन्फिडेंट आ चुका था, ओवर कॉन्फिडेंट. कहता चल यार, कहता इस बार थोड़ा रूट चेंज कर लेंगे. कहता कोई भी रूट कर लेना यार, चिंता क्या, तू चल. उसने एक बार चल, तो थर्ड टाइम रेस हुई, तो इस बार रास्ते में जमुना नदी आती थी. तो जमुना नदी जैसी आई, खरगोश जी की ब्रेक लग गई वहां पर. ही कुंड क्रॉस, धीरे धीरे कछुआ आया, जमुना जी में डुबकी लगाई, क्रॉस किया और फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गया. सो moral 3 of the story is identify your. हर आदमी के अंदर अपनी कुछ ना कुछ कोर कंपिटेंसी है. लेट मी टेल यू, बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बेस्ड ऑन योर कोर कंपिटेंसीज. चेंज द प्लेइंग फील्ड टू सूट योर कोर कंपिटेंसी. द स्टोरी कंटिन्यूज. दोनों बड़े अच्छे दोस्त बन गए, बैठ के शाम को चाय पीनी, गप्पे मारनी कि यार कभी तू जीता था, कभी मैं जीता, फिर ऐसे किया था हमने. कहता चल एक बार और भागते हैं दोनों मिलके, लेकिन इस बार वी विल रन लाइक ए टीम. सड़क के ऊपर खरगोश नीचे, कछुआ ऊपर, एंड फुल स्पीड से भागेंगे. जैसे नदी आएगी, तू नीचे मैं ऊपर, नदी पार करेंगे अदर साइड जाके, फिर खरगोश नीचे, एंड विल रीच द फिनिशिंग लाइन. So such a long journey they covered in no time by working like a team. So the moral of the story is we should work like a team. एक अगर प्रोजेक्ट है, उसमें अलग अलग कंपिटेंसीज के लोग हैं, and they reinforce each other, project will become very fast and very good. एक ही टाइप के सारे लोग आगे उसके अंदर, तो शायद प्रोजेक्ट ढीला पड़ जाएगा.
So they both felt a greater sense of happiness, satisfaction. So moral 4 of the story is, it's good to be individually motivated and have strong core competencies, but unless you are able to work in a team and harness each other's core competencies, you will always perform below par. तो एक दूसरे की जो competencies हैं उनको complement करना है. So that was the story of hare and tortoise. क्लिक करना नेक्स्ट. वी शुड ट्राई टू अचीव एक्सेलेंस इन वॉट एवर वी डू. और एक्सेलेंस के बारे में बोला जाता है इट्स अ जर्नी, इट्स नॉट ए डेस्टिनेशन. एक्सेलेंस इज नॉट ए डेस्टिनेशन. Yours is an excellent organization, there is no doubt. But then if it is at this level, let's try to achieve the next level of excellence. And the next level of excellence, and the next level of excellence. It's a journey. So, we should have an attitude to achieve excellence in whatever we do. छोटे से छोटी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनानी है, उसको भी एक्सेलेंट तरीके से करेंगे. आज जैसे छोटा सा प्रोग्राम किया जा रहा है, but I'll say it is being done in an excellent way. Thanks to Gaikwad sir and the others, whoever has done it, and जो भी है, whatever it is, जिसने भी ऑर्गेनाइज किया है, in an excellent way. पहले तो उन्होंने मुझे लंच खिलाया, बहुत ही बढ़िया, एकदम साउथ इंडियन थाली, बहुत बढ़िया, एकदम मजा आ गया. सो मैंने कहा इसके बाद तो सोना पड़ेगा. लेकिन कहते नहीं लेक्चर है अभी, तो मैंने कहा चलो. So excellent bhojan they offered, then a great cup of tea, a refreshing cup of tea followed that, and then everybody was here when I landed. It's great. So what is excellence? Excellence is doing ordinary things extraordinarily well. Ordinary things, but doing extraordinarily well. सिंपल से सिंपल चीज को बढ़िया तरीके से करना है. पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, ऑफिस की लाइफ में भी, हर जगह पर. सो दैट आपके बारे में लोग बात भी करें, यार ये बंदा जो भी काम करता है बहुत बढ़िया तरीके से करता है यार. दैट फीलिंग पीपल शुड टॉक अबाउट यू. And to achieve excellence, there are 4 steps. You should have an attitude to achieve excellence. If you have the attitude, you can acquire knowledge of any area. But knowledge alone is not good enough. You got to acquire the skills. कई बार ये जो यंगस्टर्स होते हैं ना, जो नए नए आते हैं, आपने बीटेक किया है, एमटेक किया, क्या किया बेटा? बीटेक किया. ओह माय गॉड, ये एमबीए भी है. तो कई बार ये बच्चे होते हैं, किसी जगह पर गए, इंडस्ट्री में गए कहीं पर, उनका बॉस जो होता है वो जस्ट डिप्लोमा होल्डर होता है. तो मैं तो बीटेक हूँ और अभी इस कॉलेज से हूँ, ये तो सुपरवाइजर जो है वो तो सिर्फ डिप्लोमा होल्डर है. बट ये नहीं सोचते कि इस सुपरवाइजर को 30 साल का एक्सपीरियंस है, एंड इज अ डिप्लोमा होल्डर, ही नोज थिंग्स ऑन हिज फिंगर टिप्स. सो एज ए यंग इंजीनियर यू हैव टू लर्न फ्रॉम हिम. आप बीटेक को बेटा हो सकता है एमटेक वाले भी आए, उनको भी सीखना पड़ेगा उससे, बिकॉज you have the knowledge but you have not got the skills yet. Okay, it takes time to acquire those skills. अभी यहाँ पर भी जो सीनियर लोग बैठे हुए हैं, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाते रहते हैं, आए दिन इतनी बना चुके हैं आज से, वो यंगस्टर उसको फोन पे पूछता है, सर इसका कैसे, फोन पे बता देता है उसको, इसको तू ऐसे कर ले यार, इसको ऐसे कर ले. जबकि यंगस्टर्स को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बिकॉज वो स्किल अभी आई नहीं है. वो जो जितना सीनियर, वो करते 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 उसकी हैबिट बन जाती है फाइनली. सो आइडिया ये है कि इतनी प्रैक्टिस करो कि अल्टीमेटली वो आपकी हैबिट बन जाए. आप लोगों के बच्चे जब एग्जाम देते हैं स्कूल कॉलेज के, तो कई बार वो प्रैक्टिस नहीं करते. मम्मी पापा मैं ऐसे पढ़ के ना मैं समझ जाऊंगा मुझे कैसे करना है. सॉरी, वो नहीं चलता. यू हैव टू डू द प्रैक्टिस ऑफ सॉल्विंग दोज न्यूमेरिकल्स एंड सवाल. प्रैक्टिस करनी है, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स हो, या कुछ भी करना हो. प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चों को यह सिखाना जरूरी है, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आए, उसको देखते ही आपके दिमाग में वो पूरी रील चलनी चाहिए, इसके ये स्टेप्स इन्वॉल्व हैं. ये नहीं कि यू आर ट्राइंग टू डिस्कवर फॉर द फर्स्ट टाइम कि ये कैसे करना है. एंड दैट इज पॉसिबल थ्रू प्रैक्टिस. इट शुड बिकम हैबिट. तो इसके जो 4 फर्स्ट लेटर्स हैं उनको नोट कर लीजिए, AKSH, अक्ष. Let Aksh become the Lakshya of your life for everybody. And this holds again true in every field. आजकल सर्दियों के दिन हैं, गोभी पराठा पिछले दिनों में काफी लोग खाते थे. Who is good in making गोभी पराठा? Oh मैडम, yes मैडम, आपका नाम? वीरा सिंगल जी. वीना सिंगल.
वीना सिंगल जी बहुत बढ़िया गोभी पराठा बनाती हैं, ग्रेट। कब जा रहे हो उनके घर? अच्छा, एनी लेडी हु डजंट नो हाउ टू मेक गोभी पराठा? लेडी, you don't know? You know, okay. Any lady who doesn't know how to make gobi paratha? हाँ, इसको नहीं बनाना आता। क्या नाम है बेटा? मानसी, ओके। मानसी को गोभी पराठा नहीं बनाना आता, बट उसका एटीट्यूड है, कहती गिवन इंस्ट्रक्शंस आई कैन मेक इट। यूट्यूब पे जाकर के देख के मैं बना सकती हूँ आराम से। सी दैट्स द कॉन्फिडेंस मानसी हैज। गुड। अब मानसी, यू आर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, बीटेक, यस। अब मानसी ने कभी पराठा बनाया नहीं है। अब वीना जी पराठा बनाती हैं, एक्सपर्ट हैं, तो जैसा उन्होंने बुलाया गिवन इंस्ट्रक्शन आई मेक इट। अब उन्होंने सोचा चलो इस वीकेंड में मैं भी अपनी मम्मी पापा को थोड़ा इंप्रेस करती हूँ, मैडम ज़रा बता दो कैसे बनाना गोभी पराठा। तो मैडम पूरी थ्योरी समझा देती हैं इसको घर जाके। अब ये पहली बार जस्ट इमेजिन गोभी पराठा बनाने जा रही है, तो पहले तो जैसे ही बेलती है तो कभी इंडिया का मैप, कभी पाकिस्तान मैप, कभी बांग्लादेश, बट देन शी इज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, स्मार्ट है, ऊपर थाली रखती है और गोल काट लेती है, तो शी मैनेजेस दैट। बट द नेक्स्ट पार्ट इज नाउ वेरी ट्रिकी, कि गोभी का जो मसाला है वो डालना है और दैट शुड बी यूनिफॉर्म आल्सो, वो नहीं होगा पहली बारी में, ओके, बिकॉज द स्किल इज नॉट देयर येट। दैट कम्स विद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। कई बार वाइफ को बोलता मैं बना देता हूँ, यहाँ तो गोभी है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ आटा ही आटा है। तो इट टेक्स टाइम, इट टेक्स स्किल्स, which you can definitely do it over a period of time. Okay, so all these 4 steps are required to achieve excellence in any area. That is the funda. और एटीट्यूड के बारे में बोला जाता है, it is your attitude, not your aptitude, that decide your altitude. जिंदगी में कितनी बुलंदियों तक जाओगे अल्टीमेटली आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है। For first job, marks, whereas these things will carry, but otherwise how you will rise in the organization or go to different organization आपके attitude पे depend करेगा वो। Very important. Binoculars, use them fully. What does it mean? कि binoculars को जब आप normally देखते हो तो दूर की चीज नजदीक दिखाई देती है। When you reverse the binocular, नजदीक की चीज भी दूर दिखाई देती है। Exactly same way आपके आसपास so many negative things are happening. Wherever you see negative things happening, reverse your mental binocular. Don't waste your energy, effort on that. But जहाँ positive चीजें हो रही हैं, yes, focus on that, because that is going to increase your energy and enthusiasm. So use your mental binoculars fully. जहाँ reverse करनी है उसको reverse कीजिए. Let's not be illiterate anymore. Illiterates are not those who cannot read or write. They are not those who cannot use computers or smartphones. They are those who cannot learn, unlearn, and relearn. You have to unlearn also so many things. All the senior people sitting here, they have used computers, punched cards वाले या वो tape वाले, ये लैपटॉप वगैरह थे ही नहीं हमारे पास, मोबाइल की तो बहुत दूर की बात रही। So we have unlearned. पहले चिट्ठियां लिखते थे, महीने के बाद जाती थी, महीने बाद जवाब आता था, सब चीजें। आजकल when you send a mail, you expect within 24 hours response. Within 24 hours. And you have to give it. So learn, unlearn, and relearn. Learning never stops. Real teachers in this world, they are the great learners. We should learn from the teachers. They teach you those things also which they have not studied themselves. So same way, you also should be able to learn so many things which you have not learned in your college. Learning is simple and eternal, and the can-do attitude can make us learn anything and do anything. मेरा फंडाज ये है कि अगर जिंदगी में आपने 12th क्लास बिना कॉपी किए हुए पास की हुई है, यू कैन लर्न एनीथिंग ऑन योर ओन। ठीक बोल लगता है? अगर 12th क्लास बिना कॉपी किए हुए आपने की हुई है, कुछ भी आप सीख सकते हो अपने आप। So many things are there in this world. इसको क्लिक कर दीजिए and enjoy this video and switch off these lights.
Yes, I can. Suddenly, yes, I can. Gee, I'm afraid to go on has turned into yes, I can. Take a look, what do you see? 133 pounds of confidence in me. Got the feeling I can do anything. Yes, I can. Something that sings in my blood is telling me yes, I can. I was just born today. I can go all the way. Yes, I can. 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 Hey, yes, I can. No, you can't. Yes, I can! Are you ready? I can climb Everest. Yes, I can. I can fight here all night and never rest. Yes, I can. I was just born today. I can go all the way. Yes, I Just see the energy and enthusiasm of these people. इसको देख के तो एक बार तो लगता है हे भगवान तूने हमको सब कुछ दिया है तो हमारी एनर्जी और एंथुजियाज्म तो इनसे कई गुना ज्यादा होना चाहिए कई गुना am I right? अगर इनके अंदर इतनी एनर्जी और इनका जोश हो सकता है तो हम में क्यों नहीं हो सकता so that thing should come into our mind and we should devote our full efforts in whatever we do and things will start changing. The basic thing they say, let's try to be good human beings. We must thank God for everything we have instead of worrying about what we don't have. Unfortunately, हम उसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है और बिना बात के दुखी होते रहते हैं. अरे भगवान को उस चीज़ के लिए धन्यवाद दो जो आपके पास है यार और बहुत कुछ है बहुत कुछ आप सब इतनी बढ़िया कंपनी में जॉब कर रहे हो दैट इटसेल्फ इज अ बिग थिंग मेनी टाइम्स हम भी आपस में डिस्कस करते हैं मैं मेरी वाइफ अरे आपको तो यहां होना चाहिए था देखिए यहां पहुंच गए ये बहुत बड़ी बात है हम कहां से आए थे थिंक अबाउट दैट द लेवल फ्रॉम वेयर वी केम एंड वी आर हियर सो हर आदमी मोदी जी की तरह प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकता ना या रेखा गुप्ता की तरह चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता एवरीबॉडी हैज सबकी ये डेस्टिनी लिखी हुई है हैव फेथ इन दैट अपना काम करते जाओ जो गीता का वो श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन अपना काम करते जाओ बढ़िया से बढ़िया अब यहां पर आपको इतनी सैलरी मिल रही है इतनी क्यों नहीं मिल रही अरे यार बी हैप्पी अब नेवी ने हम लोगों की पेंशन बढ़ा दी इतनी फौजियों की आर्मी एयरफोर्स नेवी वालों की मालूम है ना OROP का नाम सुना होगा आपने उसके बावजूद हमारा एक भाई कुछ लोगों को भड़का करके जंतर मंतर पर फिर भी बैठा रहा वो मेरा दोस्त भी है बाय द वे मेरा सीनियर है बट दोस्त भी है कहते जेतली तुम भी आ जाओ मैं क्या क्यों भैया जितने पैसे तुमको मिल रहे हैं आर यू एबल टू स्पेंड इट यू आर नॉट एबल टू स्पेंड इट नो हमने इतना मांगा था उन्होंने हमको इतना दिया मैं क्या बी हैप्पी
98% वी हैव गॉट व्हाट यू वांटेड, 2% रह गया। फिर भी मनोहर पर्रिकर जी ने बोला था आओ टेबल के क्रॉस बैठते हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन वो कुछ पॉलिटिकल एम्बिशन थे, जो भी कही उस बंदे के, जिद करके बैठा रहा। एंड फाइनली नोबडी लिसन्स टू हिम नाउ। मेजर जनरल रैंक का बंदा रिटायर हुआ। जस्ट इमेजिन, कई बार इस लेवल पे गिर जाता है बंदा। मैंने उनको बोला था जैसे ही ओवर पे डिक्लेयर हुआ, भाई साहब ढोल बजाओ, एक दूसरे के गले में हार पहनाओ कि यस वी हैव अचीव्ड व्हाट वी वांटेड, तुम हीरो बन जाओगे एकदम। लेकिन किसी ने उसको भड़का दिया, जिसको पप्पू बोलते हैं कि नहीं तू बैठा रहा यहां पर। वो बैठ गया बेचारा उसकी बात सुन करके। तो ना घर का ना घाट का, एकदम ये हालत होगी उस बंदे की। Yeah, he also dreamt big. Yes, yeah. He was dreaming too big by exploiting the situations. तो जिंदगी में instead of worrying about what we don't have, be happy with what you have, and try to give back to the society, to the nation as much as you can give. वो कैनेडी जी की कोटेशन है, do not ask what the nation does for you, ask what I can do for my nation. Think about that part. One of the basic difference between God and human is God gives and forgives, and human being gets and forgets. भूल जाता है कि भगवान ने मुझे इतना कुछ दिया है, क्रिब मारता रहता है, कंप्लेंट करता रहता है, और भगवान को तब याद करता है जब वो दुख होता है। अरे सुख में भी याद करो भगवान को यार। That's very important. Always ready to accept change in this world. Change is permanent. It is difficult but inevitable. To succeed, be ready to accept change in your life. You may have to change the way you think, the way you behave, the way you do things. Always change को embrace करने के लिए तैयार रहिए जहां पर भी हो. And if you want to bring about a change, you must be the change you want to see in this world. You have to set an example. मोदी जी ने एक स्वच्छ भारत का नारा दिया, सभी जगह पे लोगों ने भी शुरू कर दिया। Organizations, they are much cleaner today, let me tell you. Our railway stations are much cleaner, our trains are much cleaner, our metro खैर पहले से clean थी, shopping malls are much clean, things are happening. And those people, how many of you have been to Mahakumbh by the way? वाह वाह वाह, जय हो जय हो जय हो, जो लोग कुंभ पे गए हैं सबको प्रणाम, वेरी गुड, ग्रेट। मैं नहीं जा पाया, मैं लास्ट टाइम गया था जो 4 साल पहले हुआ था, इस बार नहीं जा पाया मैं। But anyway, how was it? Very clean, wonderful. That's what people tell me. Just imagine 66 crore जनता आती है, double the population of full America in one city, and they managed it so beautifully, so beautifully. 1,20,000 sweepers. उनके लिए रहने का इंतजाम, उनके परिवार के लिए रहने का इंतजाम, उनके बच्चों के लिए स्कूल भी खोल दिया उन्होंने 1.5 महीने के लिए। Imagine that. What a great organization. And which organization was doing it, you know that? L&T. All this construction, road, lighting, CCTV cameras, everything was done by L&T. Great organization of this country. और जो लोग वहां पे काम कर रहे थे, दिन रात काम कर रहे थे, let me tell you. दिन रात. It's beautiful. So they have set an example for the world कि हम ये कर सकते हैं, इतना बड़ा काम हिंदुस्तान में. 62 crore, 66 crores in fact. Yes. Yes. Human race has progressed through acquired knowledge, innovation and creativity. Our industry looks for innovators. Or innovation happens in 3 areas: processes, products and services. You are basically in services. So think, how can I improve upon this through some innovative ideas? Innovation happens when you work like an artist. 3 तरह के वर्कर्स होते हैं, एक होता है स्लेव, दूसरा होता है फूल और तीसरा होता है आर्टिस्ट। स्लेव वो होता है जब उसको बोला जाता है काम करने के लिए, he does it and then sits. और फूल होता है सेम काम करता रहता है without bothering whether the result is coming or not. You got to work like an artist, keeping the final aim in mind. कि yes, मुझे ये अचीव करना है. Be result oriented rather than task oriented. Differentiate between activity and accomplishment. There are some people जो सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में बहुत बिजी रहते हैं, बहुत बिजी हैं सुबह से लेकर शाम तक, but at the end of the day
अचीव क्या किया वो मालूम नहीं है। यू शुड बी एबल टू टेल योर सेल्फ कि यस टुडे, आज दिन में मैंने ये अचीव किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। अगर किसी दिन आपको लगे कि नहीं यार आज तो साला इसमें टाइम वेस्ट हो गया, आज ये एक मीटिंग आ गई, आज वो मिलने के लिए आ गया था उसमें टाइम वेस्ट हो गया, टुडे आई कुडंट अचीव मच, दैट शुड गिव यू फीलिंग ऑफ लिटिल बिट रिमोर्स कि यार आज मजा नहीं आया। ओके, तो यू गॉट टू कन्विंस योरसेल्फ एंड सेटिस्फाई योरसेल्फ कि यस कि आज मैंने ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए अचीव किया और आज मैं नहीं कर पाया किसी कारण से। टाइम मैनेजमेंट हम सबके पास केवल 24 घंटे हैं। अदानी जी के पास भी 24 घंटे हैं और मोदी जी के पास भी और आपके पास भी 24 घंटे हैं। उसी 24 घंटे में से आपने काम करना है। मेक यूज ऑफ एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, डिमॉन्स्ट्रेट ट्रेट ऑफ पंक्चुअलिटी। आज आप सब लोग टाइम पर पहुंचे, यहां पर मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो दैट मीन देयर इज अ ट्रेट ऑफ पंक्चुअलिटी इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, दैट्स गुड। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं कहते हैं सर 10 मिनट और बैठ जाओ, अभी लोग आप पहुंचे नहीं हैं, बट यहाँ पर गायकवाड़ साहब कहते नहीं सर पहुंचिए। ये तो हम लोग चाय पी रहे थे तो उसमें हम 5 मिनट लेट हो गए, क्योंकि मैंने कहा इतना बोलना है तो कम से कम मैं चाय पी के मैं गले को तरोताजा तो कर लूँ कम से कम। Here's 5 Ds formula for time management, by the way. 5 Ds formula for time management. It is there in my book also. You can see it when you download. First D is just do it, based on urgency and importance. If it's very urgent, very important, just do it immediately. Next level of urgency and importance, delegate and monitor. Delegate and monitor. Third level, delegate and forget. यार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना अर्जेंट भी नहीं है, ये अपने आप ही कर लेगा, ठीक है, डेलीगेट एंड फॉरगेट। नेक्स्ट लेवल, वेरी लिटिल अर्जेंट, वेरी लिटिल इंपॉर्टेंट एट ऑल, जस्ट डिले इट। यार ये महीने बाद भी हो रहे थे वो तो भी चलेगा, इट इज नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट इज जस्ट डंप इट, लास्ट डी। इट हैज नथिंग टू डू विद माई ऑर्गेनाइजेशन, इट हैज नथिंग टू डू विद माई एरिया। ऐसे बिना बात के मेरे को इसमें फंसाया जा रहा है, सॉरी, इट हैज नथिंग टू डू, फॉरगेट इट, डंप इट। ओके, so there are some activities, some people come to you, so sorry, it's not my cup of tea, forget it. So you can dump. So there are 5 Ds formula for time management. Say goodbye to mediocrity. Being from middle class family or from an average institute is no reason to remain middle class forever. To be born poor as an average person is not a crime, but to die as an average person with middle class talent is unacceptable. Having reached this level, you should be able to feel happy about yourself कि yes, I achieved this thing in my life. आपकी बिगनिंग बहुत बढ़िया है, जो थोड़ा बहुत मिड या हायर लेवल पे पहुंच चुके हैं, you are in an excellent organization. Exploit all the potential God has given you to reach the greatest height possible. Let's resolve to say goodbye to mediocrity and let's bring out the genius inside us and use our potentiality to the optimum level. जो भी पोटेंशियल भगवान ने दिया है उसको ऑप्टिमम लेवल तक यूज करना है। आइसबर्ग का कितना पार्ट पानी के बाहर रहता है? 10%? Yes, sir, you are right. 10% is outside water, 90% is inside the water. ये आपके लिए स्माइली बॉल। 90% is hidden. Exactly same way 90% of your potential is still hidden. 90%, your 10% potential has come out, let me tell you. उस 90% potential को बेटा बाहर लाने की जरूरत है। And then you see how the life starts changing around you. हम बड़े लिमिटेड पोटेंशियल के साथ काम करते हैं अपना, let me tell you. काम चल रहा है, बढ़िया नौकरी मिल गई, थोड़ा बहुत काम करते हैं, अच्छा चल रहा है, फर्स्ट क्लास हो रहा है। But if you take out the balance potential, great. ये जो मैं लेक्चर आपको दे रहा हूं, 10 साल पहले ये लेक्चर नहीं दे सकता था मैं आपको, लेट मी टेल यू। आई हैव आल्सो लर्नड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। 15 साल पहले मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं बुक लिखूंगा, बिकॉज आई ऑल्सो डिडंट रियलाइज माई पोटेंशियल। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आई हैव स्टार्टेड रियलाइजिंग माई पोटेंशियल। सो सेम वे योर पोटेंशियल इज ऑल्सो हिडन। मेरा धीरे धीरे आना शुरू हुआ अभी भी मेरा कोई ये नहीं कि 100% आ रहा है कोई। आई हैव लॉट टू कंट्रीब्यूट अभी टू दिस वर्ल्ड, to this country, to this society. So आपको भी अपना जो hidden potential है उसको बाहर निकालिए। Be always enthusiastic, work with full energy and enthusiasm. Enthusiasm and desire are what change mediocrity to
एक्सेलेंस। ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, ये मेरा मोहल्ला है, ये मेरी सोसाइटी है, ये मेरा देश है, वो ओनरशिप मेंटालिटी आनी चाहिए। ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो ये ट्रेन मेरी है, कहीं पर भी लगे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, गड़बड़ हो रही है, टेक चार्ज। Here are 10 commandments of work ethics. Promptness, very important. Speed of execution, quality of work, timeliness of every task. Be a good teammate. Wear a smart attire. What is smart attire? Good pant, coat, tie. जी नहीं, smile on your face. जैसे स्माइल करते हो तो पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है बंदे की। क्यों जी? इसमें से कितने लोग हैं जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई? वही काफी है यार, अरे वाह ग्रेट, या तो मैट्रिमोनियल क्लब खोला जा सकता है आराम से। वेरी गुड, तभी इतना खुश नजर आ रहा है ये। तो जितने भी हाथ खड़ा किए जिन लोगों ने, अगर आप स्माइल नहीं करोगे तो क्या शादी हो जाएगी आपकी? चांस ही नहीं। लड़कियों को लड़का रिजेक्ट कर देगा और लड़कों को लड़कियां रिजेक्ट कर देंगे अगर स्माइल नहीं करोगे तो स्माइल इज द बिगेस्ट बेस्ट अटायर गॉड हैज गिवन अस, एंड दैट स्माइल शुड बी देयर ऑलवेज इन योर ऑफिस आल्सो। व्हेन यू एंटर योर ऑफिस यू शुड एंटर विद अ स्माइल, ताकि जो बाकी लोग भी हैं उनके अंदर भी वो चीयरफुलनेस आ जाए। और कुछ सीनियर लोग सोचते हैं कि यार अगर मैंने स्माइल कर दिया ये लोग उसका एडवांटेज ना ले ले। That's all wrong impression, let me tell you. Nobody takes advantage. आपके एम्प्लॉइज में भी जोश आ जाएगा काम करने का बढ़िया से। So always welcome your employees, your juniors, seniors, everybody with a smile. Cheerfulness. Demonstrate an urge for learning. Integrity and honesty is very important. Optimum utilization of resources. हर जगह पर resources optimum है, let me tell you, unlimited resources नहीं होते। Within limited resources, you have to achieve your aim. Only then the organization is profitable. Otherwise, loss में जाती है organization. So within limited resources, you have to achieve your goals. Help others perform, achieve results. Very important. आज ये बंदा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना रहा है और कल सबमिट करनी है ये रात को 12 बजे बैठे तो भी नहीं कर सकता। चल यार मैं इसकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ, चल गुरु ला मैं थोड़ा करेक्शन देख लेता हूँ, मैं कुछ पेजेस देख लेता हूँ, करेक्शन हो रहा है। So help each other, help the other mates. आज आप उनकी हेल्प करेंगे, कल वो आपकी हेल्प करेंगे। So we should work like a team within the organization. How we can perform better. Seek guidance, look for a mentor. Even at this stage, let me tell you, I have a mentor. And you can have different mentors in different areas. और mentor के साथ जरूरी ये नहीं कि आपका कोई पर्सनल कनेक्ट हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, no, not required. मैं साहब को बता रहा था, जॉन चैम्बर्स हमारा सिस्को का टॉप बॉस होता था, अभी तो रिटायर हो गए वो भी। I took him as my mentor as far as this presentations are concerned. First I saw him giving a talk, I said, oh man, wow, great. ये प्रेजेंटर पहली बार मैंने उनके हाथ में देखा था 2003 में। उसके बाद कुछ लोग प्रेजेंटेशन देते हैं ना, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, इट्स हॉरिबल। तब से मैंने कहा नहीं बेटा ये हाथ में होना चाहिए। और यहाँ तो ये आप लोगों ने मुझे दे दिया, लेकिन मैं भी अपना बैग में रखता हूँ, अगर बाई चांस कहीं पर ना हो तो मेरे बैग में रहता है हमेशा एक। सो ऑल दोज हु आर इन प्रेजेंटेशन देते हैं। और एक और चीज़ आपने मेरी प्रेजेंटेशन में देखी होगी, सभी पॉइंट्स बुलेट वाले जो हैं एक एक करके आते हैं, ताकि ये नहीं होना चाहिए कि आप पहले पॉइंट पे बात कर रहे हो और लोगों की नजरें तीसरे चौथे पे जा रही हैं, पांचवें पे जा रही हैं। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। यूज फीडबैक कंस्ट्रक्टिवली, टेक रेगुलर फीडबैक, और फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस। बॉस आपको फीडबैक देता है, ये मत सोचिए कि वो मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है। टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर योर इंप्रूवमेंट, कि यस इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू इंप्रूव नाउ। जो बॉस ने मुझे कोई फीडबैक दी है उसको क्रिटिसिज्म मत सोचिएगा, बल्कि उसको थैंक्स बोलिएगा। हाँ, कहीं पर आप सहमत नहीं है किसी चीज पे तो यू कैन ऑलवेज गो एंड टॉक टू हिम आफ्टर सम टाइम, इमीडिएटली नहीं। डोंट इमीडिएटली काउंट टू योर बॉस, नो सर यू आर नॉट सेइंग द राइट थिंग।
उस समय सुन लो चुप करके बाद, घंटे बाद 2 घंटे बाद फ़ोन करो उनको या मैसेज भेजो, सर आई वांट 5 मिनट्स विद यू। फिर 5 मिनट बैठ करके आप क्लैरिफाई कीजिए, नो प्रॉब्लम। व्हेन इन डाउट सीक क्लैरिफिकेशन, परफेक्टली ओके। हियर आर 3 पिलर्स ऑफ लीडरशिप, कंपिटेंसी, कैरेक्टर एंड एंथुसियाज्म, तीनों को मुट्ठी में बांध लीजिएगा। कॉलेजेस में सिर्फ कंपिटेंसी की बात की जाती है, सब्जेक्ट्स की बात की जाती है, कैरेक्टर और एंथुसियाज्म पे देयर इज हार्डली एनी वेटेज। लकीली हमारे आईआईटीज में एंथुसियाज्म पे बहुत जबरदस्त वेटेज है, लॉट ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, लॉट ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज, तो उसमें जोश आता है खूब दबा करके। मैनी कॉलेजेस दे डोंट हैव। सो ये हैं तीनों पिलर्स लीडरशिप के। They say 5% people in this world make things happen. 5%. 15% people watch things happening. And 80% don't know what the hell is happening. Be in that top 5% wherever you are. And you are from a very, very reputed organization. चाहे आप सोसाइटी में हो, वहाँ भी टेक चार्ज कीजिए। कहीं मोहल्ले में, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, टेक चार्ज। Be in that top 5%. I've got a lot of stories to narrate, but today I will not narrate. फिर कभी देखेंगे। What is good and what is bad? कई बार आप इस दोराहे पे पहुंच जाते हो कि मैं ये काम करूं या ना करूं। So how do you finally decide? Just think कि ये काम करने से अगर कल को न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आ जाता है या टीवी चैनल पे आ जाता है, will my parents be happy? Will my children be happy? Will my teachers be happy? If the answer is yes, that means it's a good job, just do it. अगर लगे कि नहीं यार मेरे पेरेंट्स की नाक कट जाएगी, मेरे टीचर्स को भी मैं मुंह नहीं दिखा पाऊंगा, मेरे बच्चे भी मेरा मजाक उड़ाएंगे, that means a bad job. Just don't do it. So easy. Just से दिमाग में लाइए कि ये काम करने से क्या रिजल्ट होने वाला है। You will never go wrong in your life, let me tell you. Never. ये जनाब अल्बर्ट आइंस्टीन साहब हैं, इन्होंने बोला था, द वर्ल्ड इज अ डेंजरस प्लेस नॉट बिकॉज ऑफ द पीपल हु डू इवल बट बिकॉज ऑफ द पीपल हु लुक ऑन एंड डू नथिंग अबाउट इट। हम सब अच्छे लोग हैं, बट दैट डजंट मीन दैट वी शुड बिकम इनर्ट, इनएक्टिव। नो, कहीं पर भी गलत काम हो रहा हो, जस्ट टेक एक्शन। एक गली के अंदर 2 गुंडे 200 घर हैं, उनकी नाक में दम कर देते हैं बिकॉज वो बाकी 198 बहुत ही अच्छे आदमी हैं, वो खिड़की बंद करके चुप करके बैठे रहते हैं। उनमें से 4 लोग भी बाहर आ जाएंगे, वो 2 गुंडे भाग जाएंगे। सो डोंट अलाउ द गुंडा एलिमेंट्स टू टेक चार्ज ऑफ दिस सोसाइटी। डोंट बिकम इनर्ट, डोंट कम इन दिस कैटेगरी ऑफ द गुड पीपल हु लुक ऑन एंड डू नथिंग अबाउट इट। The leaders put in that little extra effort. The competition is there in the market. हर जगह कंपटीशन है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट जो लेता है वो जीत जाता है, वो फाइनली क्रॉसिंग लाइन पार करता है। Yesterday is, tomorrow is, and today is. That's why we call it the present from the God. Make use of this today in all respects, and your life will start changing. So we can thrope and with teamwork. और ये सब चीजें जो हैं ये आपको करनी है विद पैशन के साथ, और जिंदगी आपकी बदलनी शुरू हो जाएगी। इसको क्लिक मार दीजिए, एंड दिस इज द लास्ट वीडियो, एंड विद दैट वी विल से सर आपके लिए उस पार कार का इंतजाम किया है। सर आइए सर। चल चल। I hate this country. चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। लगा हाथ
तुम चलो तो हिंदुस्तान चले. So with that, I say thank you very much. So nice everyone. Now the house is open for any questions you have in your mind. Any questions, anybody? I have a suggestion. If you Yes, sir. can add gratitude word in that as well. Will be added, sir. Thank you. Gratitude, yes. Because until we give Yeah, gratitude. Yeah. Yes, जब हम कहते हैं भगवान ने सब कुछ दिया तो वहाँ पे word gratitude. Yes, very important word. No doubt. Will be added. Any questions? Youngsters? Elders? लगता है मैंने सारे फंडे क्लियर कर दिए. Give a feedback. Whether you like it or not. That is a teacher's story. If you ask questions, you have understood. Sir, actually, nowadays it's a very good, inspiring session we had. But actually, sometimes we see like the stratum we have in our society. You know, that comes to the mindset of the society. That comes a real bottleneck. You know, when you start something good and you want to change the thing, definitely you change starts from yourself itself. But when you initiate something, you see that you are doing it for the good of the society or society for the people, but people don't join you, and that discourages you a lot. So what can be done at that time? Like you back out, or what you do at such time? You are doing it for the humanity, for the society, but you know people don't come with you. And I think it happens. I think a lot of it must have happened with all of us, or most of us. Anyway. So, that. What I have seen in my life is, जब आप एक इनिशिएटिव लेते हो तो नॉर्मली आपके साथ लोग जुड़ जाते हैं. इनिशिएटिव लेने वाला चाहिए. जैसे इस लास्ट वीडियो में वो बच्चा आकर के अकेला ही उसको डालना शुरू कर दिया. फिर एक ने सोचा, दूसरे ने देखा, तीसरे ने देखा, तो फाइनली उन्होंने पेड़ को उठा लिया. नॉर्मली ऐसा होता है कि इनिशिएटिव लेने वाला कोई नहीं होता. वंस यू टेक इनिशिएटिव पीपल जॉइन यू नॉर्मली. बट देयर आर सम केसेस, किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी एरिया में इनिशिएटिव लेने पर भी यू फील कि मैं अकेला ही हूं. अकेला ही हूं. माई सिचुएशन इज जस्ट कीप डूइंग इट. कि मैं तो ठीक कर रहा हूं, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं. आज नहीं तो कल कोई और देखेगा तो साथ में ले लेगा. एज ए बॉस इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप चलते हुए कहीं पर देखते हो रैपर गिरा हुआ है, तो आप जस्ट रैपर उठा करके नियरेस्ट डस्टबिन ढूंढ करके उसमें डाल देते हो. आई टेल यू, अगर 5 लोगों या 2 लोगों ने भी देखा है ना, अरे यार उन्होंने खुद अपने हाथ से उठाया और डस्टबिन में डाल दिया. पहली बात तो वो बंदा खुद नहीं फेंकेगा दोबारा अगली बार, लेट मी टेल यू. और दूसरी बात, शायद वो खुद भी उठा ले कि यार ये मेरा बॉस कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता. ये तो थोड़े दिनों के बाद आप देखोगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन एकदम साफ सुथरी रहेगी. नोबडी विल थ्रो ए कचरा. डू नॉट बॉदर अबाउट अदर्स फॉलो और हाउ मेनी पीपल फॉलो यू. यू जस्ट डू योर जॉब. कर्मण्य व्याधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन. मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, बस ठीक है. अब मैं इतना बोलता हूँ लोगों को, क्या हर लोग चीज़ फॉलो करते हैं? नहीं फॉलो करते. बट जस्ट 10% लोग अगर 10% चीज़ भी फॉलो कर लेंगे, ग्रेट. मैं सर को बता रहा था खड़गपुर में जब पहली बार मैंने लेक्चर दिया, एट द एंड इतना ही, इससे थोड़ा बड़ा क्राउड था, 250 के आसपास लोग थे. वन स्टूडेंट कम्स टू मी, सर आई वांट टू शेयर समथिंग विद यू. मैं कहा बोलो बेटा. सर, आफ्टर लिसनिंग टू यू आई हैव ड्रॉप्ड द आइडिया ऑफ कमिटिंग सुसाइड. जस्ट इमेजिन. कहता सर मुझे में जोश आ गया अभी. आई वाज जस्ट थिंकिंग हाउ टू फेस माय पेरेंट्स. आई हैड फेल्ड इन ऑल द सब्जेक्ट्स, लेकिन मेरे में दोबारा जोश आ गया. वो मैंने फिर उसको 10 मिनट बिठाया, फिर उससे बातचीत की मैंने. एंड देन आई केम टू नो अबाउट हिज प्रॉब्लम एंड बट आई सेड जस्ट डोंट वरी. आई जस्ट हैपन टू सी योर पोस्टर, जैसे ही आप नोट लगाया हुआ था. कहता मैंने आपका पढ़ा, वो कमांडर नेवी का. कहता आज रात का मेरा प्लान था. मैंने सोचा चलो जाके सुन लेता हूँ कौन है ये. और उसके बाद उस बंदे में जोश आ गया. तो ऐसा उसने तो बोल दिया, हो सकता 2 लड़के कोई और भी हों, 3 और भी हों. दूसरा कोई सुसाइड के चक्कर में ही था, लेकिन वैसे ही डिप्रेस था, लेकिन उसमें जोश आ गया, दोबारा आ गया.
तो कई बार आपके करने से, अच्छा काम करने से कुछ लोग इंस्पायर हो जाते हैं, आपको बताते नहीं हैं वो लोग. But if you are able to bring about a change in the lives of some people, you have done your job. Same story of making suicide, I think it resembles to Dr. APJ Abdul Kalam also. I think. Correct, वो भी सोच रहे थे. Yes. Same thing. Yeah. Correct. जब वो ऋषिकेश गए थे तो something like that. Yes, correct. Yeah. Right. So अपना काम करो, ये काम करना मुझे, मैं करूँगा. दूसरे लोग साथ में चलें, अच्छी बात, ना चलें तो भी अच्छी बात, एकला चलो रे. A time will come when people will come with you. It happens. So. So first clap for Commander V.K. Jetli sir, loudly. A wonderful session, and he covered all aspects of management, behavior, industrial psychology. So many things he has covered, including leadership and all these things. I really would like to mention recently CMD sir, Govind Jaiswal sir, who was supposed to be here but he is not here. He also told ki there should be a training type of this thing, motivational speakers and like that. And ED sir, it is his primarily then initiative to ensure all the things to be taken in place, and in a nice manner we could achieve 5% of that out of his expectation. So whole credit goes to the senior management, the CMD, ED, and my HR team. We suddenly got ki cultural committee will not do this and the HR team will do. So Sushanji, Vinaji, and all other our colleagues, they really put efforts in 2-3 days of time, and therefore we are here and we are the part of this wonderful session. So with this thing, I will request ED sir to present a memento from HCL side to Commander Jetli sir and grace the occasion. So thank you very much once again to all of you also for being a part of this wonderful program. Those who have missed it, they should also visit the YouTube. It was a nice direction by ED sir and our management, CMD sir, to have recorded this session, and we were go live through YouTube. So I will request ED sir to speak a few minutes, or that then it's over. Yeah. Yeah. So you can join the high tea in the cafeteria area, nicely organized by admin team.